to the next topic, basic principles of flight. Okay, this is one of the important topic from a perspective of how your aeroplane or drone flies. Okay, this will give you the clarity about the technicality on what the drone actually flies. Okay, do you have any idea, any thought process, prior understanding of how actually the drones are flying or how the aeroplane actually flies? We always have a curiosity every time we stand outside and see the aeroplane flying. We always get thrilled how such a big, huge aeroplane flies. Do we have any idea around it? Science behind it, I would say. Any idea? Not really. Okay, no problem. Even you don't have idea, it doesn't matter. Don't worry about it. I'm there to clear your doubts and give you that perspective. You see complete perspective of looking towards the drone as well as the aeroplane. Okay, so let's start with the topic basic principles of flight. This topic doesn't have much of the things to know, but important parts are the definitions and the understanding of how actually the aeroplane or the drone flies. Okay. So what are the topics we are going to cover in this particular module is fundamentals of flights, aerodynamics, takeoff, flight and landing, manual turns and circuit patterns. Okay, so these are more or less from a flying school. Okay, whenever you go to any flying school and you are learning to fly an aeroplane, these are the basic things what they would cover for you to understand the flight. Okay, any flying school will teach you these basic things. Okay. So what are the things we need to understand from the fundamentals of flight? There are certain definitions or points which you need to understand or remember. One is aerofoil, chord line, relative wind, center of pressure, angle of attack, angle of incident, center of lift, center of gravity, and the most important on which the aeroplane actually flies, which we call as Bernoulli principle. Any idea what do you mean by Bernoulli principle? Have you heard No, about sir. it? Never. No, never. Okay, now let's understand each by each one. We'll see all these definitions one by one and how they are related Okay. and how they help in flying the. The first one is aerofoil. Aerofoil is a cross section shape of a wing blade of a propeller rotor or a turbine. Cross section मतलब एक section cut किया है हमने. Okay. If you see, I have a cross section. You can see a cross section. ये पूरा ऐसा पूरा मिला के देखा तो बड़ा है तो आपका एक एरोप्लेन का विंग बन जाएगा, राइट? अगर ऐसे मैं और शेप्स ऐड करूंगा तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन कवर कर दिया. क्रॉस सेक्शन. You can see the cross section over here. This is called as aerofoil. Aerofoil. You can see how thin it is. Okay, मैं थोड़ा सा thick रखा हूँ so that you can visualize it. But if I make multiple aerofoils like this, then it will form a wing. Right? एक wing हो जाएगा. Right? So wing, if you see from the sideways the wing, it has the upper surface and the lower surface. Right? You can see upper surface and the lower surface, and it has a leading edge. You can see the leading edge and the trailing edge, where the upper surface and the lower surface join together. Okay? So this is called as trailing edge. You can see in the image Very. also, okay, the leading edge Yeah. and the trailing edge, right? I hope you are able to Very. see airfoil, right? Yes, sir. You can see airfoil in my hand, right? This is airfoil section, cross section of a Yeah. wings. Okay, so it has the upper surface and the lower surface. The surface, the bigger part surface, or the thicker part is called as a leading edge. The sharper edge is called as trailing edge, where the upper surface and lower edge meet together, or lower surface meet. This is called as a trailing edge. Okay. Now the chord line is nothing but Really. from leading edge to the trailing edge. Okay, so chord line is a straight line intersecting the leading and the trailing edge. You can see here straight line from the leading edge to the trailing edge
is called as chord line, or also it is as called as chord. Okay, chord. So chord line. So I hope these two definitions are clear. What is aerofoil and what is chord line? Right. So chord line is a cross-sectional shape of a wing, of a blade, propeller, or turbine. Aeroplane. Okay, that is called aerofoil. Chord line is a straight line Aeroplane. intersecting. See, understand? Straight line intersecting leading and trailing edge of aerofoil. Leading and trailing edges of the aerofoil. Okay, now, how these are important? How the aerofoil is important and how is the chord line important? Now, relative wind. Relative wind Chord is line. nothing but direction of airflow with respect to the airfoil. तो ये आपका airfoil है, ये airfoil है यहाँ पे, और आपका wind यहाँ से आ रहा है, right? Wind का flow. So this is your relative wind, and this is your airfoil is moving in forward direction. Okay, this is moving in forward direction. So what is happening? As you are flying, as you are running, your aircraft is running on the runway. Your wing is little bit shaped. Okay, it is an angle of attack. We call it as angle of attack. Okay, so angle of attack can be vary. Okay, it can vary up and down. So but ये आपका फ्लो है, wind flow है, और यहाँ पे angle of attack हो रहा है. There will be an angle created. You can see here relative wind. Relative wind is parallel to the ground, whereas your angle of attack is angle. Okay, so जो angle form हो रहा है between the relative wind and the chord line is called angle of attack. Okay, जो angle आपका form हो रहा है with the respect to the relative wind and the chord line, that angle is called angle of attack. So the angle measured between the relative wind or a flight path and the chord of an airfoil is known as angle of attack in aerodynamics. Okay. Apart from angle of attack, there is something called angle of incidence. Okay. अभी angle of attack आप change कर सकते हो. Okay. Angle of attack आप change कर सकते हो as a pilot. Okay. But there is something called angle of incidence. Angle of incidence is the angle between the chord line. Okay. Angle between the chord line and the longitudinal axis of the aircraft. अभी ये दो चीज है ना, एंगल ऑफ अटैक आपका क्या है, एंगल कॉर्ड लाइन जो क्या है, लीडिंग एज ट्रेलिंग एज, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, कॉर्ड लाइन बन गया, करेक्ट. एंगल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस क्या है, फ्रॉम द टिप ऑफ द प्रोपेलर टिल द टेल देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. तो दो लाइंस आ गए, तो ये जो एंगल है ये कांस्टेंट रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते. ना आप कॉर्ड लाइन चेंज कर सकते हो, ना आप लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस चेंज कर सकते हो, ये तो दोनों फिक्स्ड है. So this is angle of incidence designed during the design of the aircraft. जो आपका एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है, तो डिजाइनर होता है, वो डिजाइन करता है, उसमें डिजाइन किया रहता है. So accordingly, what would be the angle of incidence for this particular aircraft? Okay, so it is angle between the chord of the airfoil, जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, as well as longitudinal axis of the aircraft, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते. वो दोनों फिक्स्ड है. तो दोनों फिक्स्ड है तो क्या होगा? दोनों फिक्स्ड है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट it cannot be changed by the pilot, right? But angle of attack change हो सकता है. क्यों angle of attack change हो सकता है? Because with respect to the आपका जो angle of attack है वो change हो सकता है. आपका एरोप्लेन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो accordingly जो angle है ये कम ज्यादा हो सकता है. अगर देखो कम है, पैरेलल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? अगर आपका एंगल ऑफ अटैक इन एरोप्लेन उसके लिमिट से बाहर होगा तो क्या होगा? क्या होता है, कुछ पता है? नहीं सर. इफ द एंगल ऑफ अटैक इज वेरी हाई, आपका एरोप्लेन will turn. फॉल हो सकता है. Fall. इट इज कॉल्ड स्टॉल. इट इज दैट पोजीशन इज कॉल्ड स्टॉल. ओके, बोलते हैं ना एरोप्लेन स्टॉल हो गया, स्टॉल हो गया. स्टॉल मतलब फॉल हो गया, वो गिर जाएगा, पत्थर के जैसे नीचे गिर जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग बैक एरोप्लेन इन अ नॉर्मल कंडीशन इफ यू आर एनकाउंटरिंग स्टॉल. स्टॉल से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है. स्टॉल मतलब ऑलमोस्ट आपका एरोप्लेन क्रैश हो गया, कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ना पावर रहेगा, ना टाइम कुछ रहेगा, आप कर पाओगे एज अ पायलट. तो पायलट को पता होना चाहिए कि मेरा एरोप्लेन का एंगल ऑफ अटैक कितना है, कितना एंगल ऑफ अटैक मैं दे सकता हूँ. उसके ऊपर नहीं जाना. अगर उसके ऊपर जाऊंगा तो माय एरोप्लेन प्रोबेबली विल स्टॉल. ओके, so beyond certain prescribed limit of angle of attack, the pilots will never take their aeroplane
beyond defined angle of attack. Okay, suppose मेरा higher angle of attack is 20 degree, so I cannot go beyond 20 degree. अगर मैं 20 की जगह पे 21, 22, 25 डिग्री पे चला जाऊंगा, पॉसिबली मेरा एयरक्राफ्ट स्टॉल होने का चांसेस होते हैं. ज्यादा. So that is what is about relative wind, angle of attack and angle of incidence. Incidents. Okay, angle of incidence कब काम में आता है? जब आपका एरोप्लेन रनवे पे फ्लाई होता है ना, तो इनिशियल लेवल पे जो लिफ्ट चाहिए, इनिशियल लेवल पे एक स्पीड मिलना चाहिए, इनिशियल लेवल पे एरोडायनेमिक्स जो डिफाइन किए हुए होते हैं, उसके लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफाइन करता है. मैक्सिमम आपका टेक ऑफ के लिए आपको एंगल ऑफ अटैक की जरूरत होती है. जैसे आप एंगल ऑफ अटैक थोड़ा इंक्रीज करते हो, ऑटोमेटिक अपना एयरक्राफ्ट हवा में टेक ऑफ हो जाता है. ओके, एक बार आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ तो आपको क्या करना है? एक सर्टेन हाइट पे लेके जाना है और फिर उसको स्टेडी फ्लाइट में आपको फ्लाई करना है. अभी स्टेडी फ्लाइट में कैसे फ्लाई होता है एरोप्लेन और क्यों होता है? ओके, तो देयर आर 4 forces which are acting on a aircraft. One is the lift. लिफ्ट यानी ऊपर जो एरोप्लेन को हवा में रखता है. ओके, बट साइमल्टेनियसली हवा में रखता है तो एरोप्लेन का वेट भी है. एरोप्लेन हैज इट्स ओन वेट, राइट? तो वेट क्या करता है? ग्रेविटी उसको नीचे पुल करता है. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं. अगर सपोज आपका वेट ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपका एरोप्लेन नीचे आएगा. अगर आपने लिफ्ट बढ़ाया तो क्या होगा? आपका एरोप्लेन राइज होगा. अभी एरोप्लेन क्या है? एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता. इट कैन नॉट स्टैंड ऑन वन पर्टिकुलर लोकेशन इन द एयर. इट हैज टू बी ऑलवेज इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. Keep going. Yeah. Keep going, right? Forward direction बोलते हैं. That force is called as thrust. Okay, अगर thrust नहीं होगा, सपोज अभी एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, मैं थ्रस्ट नहीं देता हूँ, मैं इंजन बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा? दोनों इंजन बंद कर दिए एरोप्लेन का, क्या होगा? मेडे पहला बोलेगा पायलट. वो तो अलग. एरोप्लेन को क्या होगा? Stall. नीचे क्रैश है फ्लाइट. अंडरस्टैंड वन थिंग, एरोप्लेन इज डिजाइन एरोडायनामिक्स. तो एरोप्लेन के अगर इंजन बंद भी हो जाते हैं तो एरोप्लेन क्रैश नहीं होता है. ओके, एरोप्लेन के अगर इंजन बंद भी होते हैं तो एरोप्लेन क्रैश होता है. वो फ्लाई करेगा डिपेंडिंग अपॉन उसके हाइट के ऊपर. अभी अहमदाबाद के फ्लाइट के में उसको हाइट ही नहीं था. हाइट ही रहता तो एटलीस्ट वो सम कुछ मैन्यूवर कर लेता था, कुछ तो घुमाता था, सेफ लैंडिंग कर लेता था या कहीं पे आराम से उतार पाता था. बट उसके पास हाइट ही नहीं था. जस्ट टेक ऑफ के होने के 2 मिनट में वो क्रैश हो गया. तो उसके पास हाइट ही नहीं था. हाइट रहता, अगर हाइट रहता सपोज 10,000 फीट हाइट होता तो वो आराम से ग्लाइड करके कहीं तो पोजीशन करता. उसको टाइम मिलता कुछ करने का, चेक करने का, कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलता. उसके पास टाइम ही नहीं मिला. पायलट के पास टाइम ही नहीं थे. इतना तुरंत हो गया कि बियॉन्ड मतलब वो मेडे भी पूरा बोल नहीं पाया. मेडे बोला और तब तक क्रैश हो गया था. लिटरली ही डिडंट हैव टाइम. बट इफ ही हैड अ टाइम, दोनों एरोप्लेन अगर दोनों इंजन भी बंद होता तो ही कुड हैव ग्लाइडेड द एरोप्लेन. ओके, तो इंजन क्या करता है? थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, यानी स्पीड प्रोवाइड करता है, फॉरवर्ड मोशन स्पीड करता है. तो जब तक थ्रस्ट है तब तक आपका एरोप्लेन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अभी क्या हो रहा है? इंजन बंद कर दिया तो उसके पास पावर नहीं है. बट सिंस इट इज डिजाइन्ड एरोडायनामिकली, इट कैन ग्लाइड. फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 फीट पे आपका एरोप्लेन है और आपके दोनों इंजन बंद हो गए तो कम से कम आप 10 किलोमीटर दूर तक फ्लाई कर सकते हो. 10-15 किलोमीटर फ्लाई करते हो, 20 किलोमीटर भी फ्लाई कर पाओगे. डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्किल ऑफ द पायलट. ये टाइम पे पायलट के स्किल सामने आते हैं या पायलट के स्किल पिक्चर में आते हैं. ओके, हाउ ही इज फ्लाइंग द ड्रोन, हाउ ही इज ग्लाइडिंग द ड्रोन, हाउ ही इज मैनेजिंग द एरोप्लेन. ओके, तो ये थ्रस्ट क्या होता है? इंजन से थ्रस्ट प्रोवाइड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, लिफ्ट क्या होता है? विंग का डिजाइन की वजह से लिफ्ट आपको मिलता है. तो आप आपका एरोप्लेन हवा में ऊपर उड़ता है. मेरे उसका खुद का वेट है, वजन है, राइट? वेट है तो वेट क्या करेगा? ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगा. तो अगर मैंने इंजन बंद कर दिया तो ग्रेविटी इमीडिएटली इसके ऊपर इंटरप्ट करेगी. बट सिंस इट इज एरोडायनामिक डिजाइन, वो इमीडिएटली नीचे नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ग्लाइड होगा, स्लोली नीचे आना चालू होगा. ठीक है, अभी जैसे थ्रस्ट उसके ऊपर काम कर रहा है, सिमिलरली थ्रस्ट का अपोजिट फैक्टर है ड्रैग. अभी ड्रैग क्यों हो जाता है? बिकॉज एरोप्लेन का बॉडी है, सरफेस है, तो सरफेस क्या हो रहा है? एयर मॉलिक्यूल से पास हो रहा है. तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं.
उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो ड्रैग कम हो जाता है. तो ड्रैग कैन नॉट बी जीरो. ओके, लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है कि वेदर ड्रैग कैन बी जीरो. नो, द ड्रैग कैन नॉट बी जीरो बिकॉज जब तक बॉडी है, सरफेस है, देयर वुड बी सम और अदर ड्रैग विल बी ऑलवेज. वो ड्रैग को हम कम कर सकते हैं. कैसे कम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एरोप्लेन डिजाइन किया एकदम स्क्वायर बॉक्स जैसा, तो क्या होगा? उसके ऊपर ड्रैग बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, राइट? अगर मैंने कर्व सरफेस है, आप इसलिए देखो एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, या इवन आपके ऑटोमोबाइल्स, राइट? ऑटोमोबाइल का शेप देखो, आगे का इनोवा का शेप देखो, या छोटा कोई भी कार का शेप देखो, दे आर ऑल एरोडायनेमिकली तो कट गए. वही जगह पे आप वोल्वो बस देखो, वोल्वो बस का इंजन का पावर ही इतना ज्यादा रहता है, तो वहां पे इतना ड्रैग उसको इतना वरी नहीं करना पड़ता. बट कार कैसे? कार छोटा है, राइट? छोटा कार है, छोटा इंजन है, तो दे हैव टू बी डिजाइंड एरोडायनेमिक. ओके, so that's why your aeroplanes are aerodynamically designed such a way that आप ड्रैग को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जितना सरफेस रहेगा उतना ड्रैग तो रहेगा ही रहेगा. आप उसको एरोडायनेमिकली डिजाइन करके ड्रैग को कम करवा सकते हो, नॉट जीरो कर सकते. तो फोर फोर्सेस लिफ्ट व्हिच इज responsible for generating the lift in the aeroplane. Weight is basically its own weight which pulls the aeroplane down. Thrust is the forward motion and drag is the backward resistance. Okay, ये मोशन नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये रोकता है, राइट? अभी आप बॉल देखो, बॉल आपका राउंड रहता है, पूरा एरोडायनेमिकली राउंड रहता है, बट आप उसको किक मारते तो वो जाता है दूर तक, लेकिन सम टाइम के बाद वो रुकता है, राइट? क्योंकि उसके ऊपर एंड ऑफ द डे उसका फोर्स जो उसको अप्लाई किया रहता है वो कम हो जाता है और उसका ड्रैग बढ़ जाता है. जैसे क्रिकेट में बॉल मारते हैं, शॉट मारते हैं, तो अगर उसको बहुत जोर से मारेंगे तो इट विल रीच द बाउंड्री, बट आप जस्ट थोड़ा सा जेंटली पुश करोगे तो बाउंड्री तक जा पाएगा? नहीं जाएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स व्हाट यू हैव अप्लाइड ऑन इट. जब तक उसके ऊपर जितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया उतना दूर जाएगा, बट एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम बिकॉज ऑफ द ड्रैग इट विल इवेंचुअली स्टॉप एट वन. राइट? फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, व्हाटएवर यू सी, everywhere this force of flight will apply on the body. Any questions from here on the force of flight? No sir. Okay, so now let's understand what is the principles of flight. तो अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो फ्लूइड यानी पानी, ये वाटर जैसा लिक्विड सब्सटेंस, a substance that continually deforms यानी flows when the external force is applied. For example, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बेसिन, अपना वाटर किचन में बेसिन में जो टैप रहता है, अगर हम लोग उसको ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो होता है, राइट? एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो होता है. बट उसके आगे आप ये देखो, आप ऐसा स्पून रखो, थोड़ा सा स्पून रखोगे तो क्या होगा? वाटर फ्लो होगा, बट वो क्या करेगा? जो फोर्स हमने अप्लाई किया या जो शेप हमने अप्लाई किया उस शेप का फॉर्म लेगा, राइट? तो कर्व शेप में फ्लो होना चालू हो जाएगा. दिस फिनोमेना इज नथिंग बट इट कॉल्ड एज कोंडा इफेक्ट. ओके, कॉल्ड एज कोंडा इफेक्ट. वो शेप ले लेगा जो भी है. तो जैसे हमने अभी आपने देखा रहेगा झरने में, तारा में भी पत्थर रहता है तो पानी साइड से निकल जाता है, साइड से बहाता है, वो दैट इज ऑल बिकॉज वाटर विल फ्लो ऑन डायरेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज कोंडा इफेक्ट. ओके, तो एक्सप्लेनेशन में लिफ्ट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो मोशन आपका सामने है, लिफ्ट आपका परपेंडिकुलर है, राइट? अपर डायरेक्शन. So this is basically difference in pressure. Whereas weight क्या है? Weight क्या है? नीचे पुल करेगा ग्राउंड पे. जितना weight बढ़ेगा उतना नीचे चलता जाएगा. So basically because of the gravity, the pull of the earth's gravity. Okay. Drag क्या है? Drag is opposite. अभी आपका एरोप्लेन सामने मूव हो रहा है, तो drag आपका ये डायरेक्शन में मूव होगा, opposite to the direction of motion. This is basically why friction and difference in pressure. तो फ्रिक्शन है, बॉडी है, ये बॉडी है, तो बॉडी के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप कार में ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो तो क्या होगा? अगर आप सारे विंडोज अगर क्लोज नहीं करते हो तो ओपन करते हो तो क्या हवा अंदर आती है तो गाड़ी आपकी तेज नहीं ड्राइव होती है, भागती नहीं है ज्यादा, राइट? तो आपको पूरे विंडोज क्लोज करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी गाड़ी एक स्मूथली भागती है, राइट? अगर आप विंडोज ओपन रखो तो क्या होता है? हवा सब अंदर आता है तो ड्रैग बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, बहुत ड्रैग ऐड ऑन हो जाता है, तो आपका मोशन स्लो हो जाता है. Okay, so now let's now understand the Bernoulli principle.
द एयर सेपरेटेड एट द लीडिंग एज। अभी आपने देखा एयरफॉइल, एयर इज सेपरेटेड एट द लीडिंग एज। तो एयर यहाँ पे हिट कर रहा है, आपका रिलेटिव विंड यहाँ पे हिट कर रहा है, कुछ एयर ऊपर से जाएगा, कुछ एयर नीचे से जाएगा, राइट। So the air separated at the leading edge of the airfoil rejoins at the trailing edge। यानी ऊपर से भी एयर आएगा, नीचे से भी आएगा, दोनों साइड से एयर जो आएगा वो वापस यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा टेल पे, ट्रेलिंग एज पे, राइट। तो एयर सेपरेटेड एट द लीडिंग एज ऑफ द एयरफॉइल rejoins at the trailing edge। The air has to move faster on the upper surface, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है ना, ये कर्वेचर बड़ा है, यहाँ से एयर ऐसा पूरा जाना पड़ेगा, वेरेस यहाँ से सीधा चला जाएगा, फास्ट चला जाएगा, राइट। यहाँ से उसको जल्दी मूव करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस कम है, दिस डिस्टेंस इज लेस, दिस डिस्टेंस इट विल टेक लेस टाइम टू कवर, वेरेस दिस इज लॉन्गर डिस्टेंस, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। सो इट द एयर, अगर दोनों को साथ में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर का एयर जो फ्लो हो रहा है वो फास्टर फ्लो करना पड़ेगा। ओके, सो एयर हैज टू मूव फास्टर ऑन द अपर सरफेस to cover the longer distance। The air flowing over the upper surface of the wing has more velocity than the air flowing below the velocity, below the wing, right? Below the wing। यानी कि ऊपर के साइड से जो एयर फ्लो हो रहा है वो फास्ट फ्लो हो रहा है, नीचे के साइड से जो फ्लो हो रहा है वो स्लो हो रहा है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस, सिंस द एयर इज फ्लोइंग, यहाँ पे हाई वेलोसिटी है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पे लो वेलोसिटी है तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, ऊपर लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, तो ये दो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपका विंग में लिफ्ट बनेगा। तो लिफ्ट एरोप्लेन, तो विंग आपका लिफ्ट देगा, तो आपका एरोप्लेन ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा, राइट। तो क्या होगा, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑफर्स साइमल्टेनियसली विद डिक्रीज इन द स्पीड। सिंस आपका यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो गया, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्पीड इंक्रीज हुआ तो आपका प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका स्पीड कम हो गया तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्लियर? डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर फ्लो कॉजेस मोर प्रेशर, राइट। ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका स्पीड स्लो है, वेलोसिटी स्लो, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, मोर प्रेशर इज क्रिएटेड बिलो द विंग, तो क्या होगा, अपवर्ड लिफ्ट फ्लो होगा, अपवर्ड लिफ्ट विल बी क्रिएटेड, राइट। वही अगर आपका सपोज मैं क्या करता हूँ, एंगल चेंज करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर मेरा ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड, एयरप्लेन विल एक्सटेंड। ओके, जब मैं लैंडिंग करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं इंजन बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसको देता ही नहीं पावर, तो वो अपने आप वेट से नीचे आना चालू हो जाता है, राइट, डिसेंड हो जाता है, लिफ्ट नहीं क्रिएट करता। तो मैं लिफ्ट क्रिएट करना है तो क्या होगा, मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल चेंज करता तो क्या होता है, ऊपर लो प्रेशर बनता है, नीचे हाई प्रेशर बनता है, नीचे हाई प्रेशर बना तो क्या होगा, ये प्रेशर ऊपर पुश करेगा, अपवर्ड लिफ्ट जनरेट करेगा, राइट। दैट इज व्हाट इट इज अबाउट बर्नौली प्रिंसिपल। लेट्स सी नाउ फ्रॉम अ इमेज। ओके, so high velocity airflow on the top which creates low pressure, low velocity on the below which creates high pressure, so this pressure difference creates lift of the aircraft। Okay, so lift is due to pressure difference, clear? Any questions here? So this questionnaire will be coming in exam, right? This topic, yes, no, not okay, मैं ये इमेज शेयर करूंगा आपको। okay, so that is about the Bernoulli principle। Understand only one thing, आपका लीडिंग एज है, ट्रेलिंग एज है। लीडिंग एज पे क्या हो रहा है, एयर हिट कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर के साइड एक जा रहा है, नीचे के साइड एयर फ्लो हो रहा है, राइट, डिवाइड हो रहा है दोनों जगह से। ऊपर के साइड क्या होगा, सिंस इट हैज टू कवर द हाई स्पीड से एयर फ्लो होगा, हाई स्पीड से होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर। ये क्या होगा, लो से हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, ऊपर के साइड और नीचे के साइड प्रेशर डिफरेंस हुआ तो क्या हुआ, लिफ्ट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यानी आपके अपवर्ड लिफ्ट फॉर्म होगा। ओके, सो लेस प्रेशर डाउनवर्ड, मोर प्रेशर फ्रॉम बिलो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो विंग है वो ऊपर उड़ने का कोशिश करेगा, राइट। नाउ लेट्स सी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? कभी पढ़ा है आपने स्कूल में, कभी पढ़ा था?
याद होगा नहीं? तो देयर आर थ्री लॉस, या देयर आर थ्री लॉस ऑफ मोशन, साइंस की बुक में हमने शायद पढ़ा होगा. तो देयर इज द फर्स्ट लॉ सेज दैट इफ बॉडी इज एट रेस्ट, ओके, अगर ये बॉल इज एट रेस्ट, इफ दिस बॉल इज एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट. अगर मैं इसको फेंकता हूँ, मैं फेंकता हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, राइट. या उसको किक करता हूँ, अगर फुटबॉल होता तो मैं पैर से किक करता था, राइट. अगर मैं इसके ऊपर फोर्स जब अप्लाई करता हूँ, आई एम अप्लाइंग द फोर्स. ये फोर्स में जब अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये बॉल और में जाएगा, राइट, या किधर भी जाएगा, wherever I have applied the force, it will keep on moving. So that till the force is applied on it, it will keep on moving. Since we are in the Earth atmosphere, तो air molecules इस पे affect कर रहे हैं, राइट. मैं फेंकता हूँ तो indefinitely तो नहीं जाएगा ना, कहीं तो जाके गिरेगा, रुकेगा, है ना. तो क्यों गिरेगा? Because there is no constant. मेरी फोर्स एक ही टाइम पे नहीं अप्लाई किया. वही अगर मैं इसको ऐसा कुछ मशीन लगाऊं जिससे ये कंटिन्यूअस अप्लाई करता रहेगा, कंटिन्यू, जैसे एरोप्लेन के ऊपर हमने इंजन लगाया, अब तक इंजन चल रहा है, मेरा एरोप्लेन कंटिन्यूअस फ्लाई कर रहा है, राइट, मोशन में रहता है. इंजन बंद कर दिया तो क्या हो रहा है, गिर रहा है, बिकॉज ड्रैग बढ़ रहा है मेरा ऑटोमेटिकली, राइट. तो क्या से रहा है दैट इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट द रेस्ट. एरोप्लेन अगर आपका ग्राउंड पे है, वो ग्राउंड पे ही रहेगा ना जब तक उस पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो. फोर्स अप्लाई के लिए क्या करते हो, आप रनवे पे लेके जाते हो, इंजन फास्ट करते हो और उसको भगाते हो, राइट. तो फोर्स अप्लाई करते हो और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे आपका एरोप्लेन टेक ऑफ किया और आप फ्लाइट में जा रहे हो मुंबई टू दिल्ली, तो जैसे वो ऊपर एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे आ गया 10,000 फीट के ऊपर, तो आप पायलट क्या करता है, इंजन का एक स्पीड सेट करके छोड़ देता है, वो अपने आप चलते रहता है, चलते जाता है, राइट. एकदम स्मूथ स्टेडी फ्लाइट में आपको पता भी नहीं चलता कि आप हवा में ऊपर, राइट. फिर आपको खाना पीना सब कुछ सर्व किया जाता है, आप उठते हो, जाते हो, वॉशरूम जाते हो, है ना, इधर उधर देखते हो, चिट चैट करते हो, ये सब कुछ ना आपको एकदम नॉर्मल लगता है, क्योंकि एकदम स्टेबल फ्लाइट मोड में आपका एरोप्लेन फ्लाई होगा. तो दैट इज व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी एट रेस्ट है तो एट रेस्ट रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी इंडेफिनेटली. बट हमारे अर्थ पे ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स. एटमॉस्फेयर के एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है. अनटिल अनलेस दैट प्रेशर इज कांस्टेंट नहीं रहता, तो आपका क्या होगा, वो बॉडी क्या जाएगा, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन एंड विल रिमेन इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. अभी जब मेरा एरोप्लेन का इंजन बंद हो जाता है तो क्या होता है, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटी अप्लाई हो जाता है उस पे. ग्रेविटी, वेट बढ़ जाता है उसका, ऑटोमेटिक फ्लाई करने का उसको ऑप्शन नहीं रहता है, बट उसका वेट की वजह से वो नीचे आना चालू होता है. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, रिमेन इन मोशन until and unless net force act on it, right. सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ changes that force is on motion. It states that a time rate of change of momentum of a body is equal to both magnitude and direction of the force imposed on it. आपका एरोप्लेन मोशन है, कंटीन्यूअस मोशन, आपके किलोमीटर पर आवर के सर वॉइस इज ब्रेकिंग. आई एम सेइंग अगर आपका एरोप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, या कार आप चला रहे हो 100 किलोमीटर पर स्पीड से, ओके, और आपको स्पीड इंक्रीज करना है, आपको जल्दी जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज करना है तो एक्सीलरेटर मारना. एक्सीलरेटर दबाते हो तो क्या होता है, आपकी गाड़ी का फोर्स, यू आर इम्प्लाइंग अ प्रेशर, राइट, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द कार, ओके. इंजन से आप फोर्स पैदा करते हो जिससे आपका व्हील्स जो है फास्टर मूवमेंट करना चालू करते हैं, आपका कार तेजी से दौड़ना चालू करता है, राइट. सो 100 किलोमीटर की जगह पे मे बी 120, 130, 140 व्हाटएवर आपने जितना स्पीड उस पे अप्लाई किया उतना. सिमिलरली एरोप्लेन आपका एक स्टेडी स्टेट में फ्लाई हो रहा है, आप थ्रॉटल ज्यादा दिया तो क्या होगा, आपकी इंजन और फास्ट मूव होना चालू हो जाएंगे और थ्रस्ट पैदा हो जाएगा, आपका एरोप्लेन और फास्ट मूव होगा. तो दैट इज नथिंग बट force. That force what get applied is the mass into acceleration. यानी जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जितना आप मास और एक्सेलरेशन दे रहे हो, उतना फोर्स पैदा होगा. अगर आपने उतना एक्सेलरेशन नहीं दिया, आपने अगर एक्सेलरेटर दबाया ही नहीं, तो क्या आपका गाड़ी फास्ट मूव होगा,
आपने एक पर्टिकुलर, आप जब दबा के रखते हो तो 100 की स्पीड में भागती है गाड़ी, अगर आप धीरे से एक्सीलरेटर स्लो कर दो, कम कर दो, तो क्या होता है, आपको खींचा हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, खींचा हो जाता है, राइट। तो दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी आपका बॉडी का मास प्लस जितना आप एक्सीलरेशन अप्लाई करते हो उतना फोर्स आपके सिस्टम पे यानी बॉडी पे अप्लाई होता है, अकॉर्डिंगली उतना आप तेजी से या स्लोली जाओगे, राइट। तो मोर फोर्स तो मोर एक्सीलरेशन, यानी कि मैं ज्यादा एक्सीलरेटर दिया, ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, तेजी से जाएगा, मोर एक्सीलरेशन, फास्टर, राइट। दिस इज अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन व्हिच योर ड्रोन्स एक्चुअली फ्लाइज। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, दैट व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in directions। यानी कि दो बॉडीज है, ये दो बॉडी, जैसे अर्थ हमारा एक बॉडी है और एक रॉकेट है, राइट। ये अर्थ है, उसके ऊपर रॉकेट खड़ा है। अभी रॉकेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, खड़ा है, अभी कुछ हो रहा है रॉकेट को, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। रॉकेट स्टेडी है एकदम, राइट, कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, रॉकेट को इग्नाइट करता हूँ, इग्नाइट करता तो इग्नाइट होता है, तो इग्नाइट करने के बाद तुरंत रॉकेट ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता है, राइट। नहीं, थोड़ा गैस आता है, थोड़ा नीचे पुश जाता है, तो वो गैस क्या कर रहा है, वो गैस क्या कर रहा है, नीचे जो अर्थ है वो अर्थ को पुश करने की कोशिश कर रहा है। बट इज इट पॉसिबल फॉर सच अ टाइनी रॉकेट टू पुश द अर्थ? नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ अर्थ इतना बड़ा है, राइट। ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ग्रेविटी, अर्थ को पुश नहीं कर सकता है, राइट। तो क्या हो रहा है, सिंस द रॉकेट इज नॉट एबल टू पुश द अर्थ, क्या हो रहा है, रॉकेट खुद राइज होना चालू हो जाता है, राइट। एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो राइज होता है, पहले तो आता है, गैस आता है, लेकिन तुरंत राइज नहीं होता है। तब तक ना, जैसे आप कार स्टार्ट करते हो, इंजन स्टार्ट होता है, तो इंजन स्टार्ट करने के बाद आपकी गाड़ी तुरंत चलती है क्या, नहीं चलती, राइट। आप फर्स्ट गियर में डालते हो और धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाते हो, इससे आप एक्सीलरेटर दबाते हो, क्या होता है, गाड़ी स्लोली स्लोली चालू होती है, जगह से पिकअप लेने। और जब फिर आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो तब वो भागना चालू होती है, राइट, रन करना चालू होती है। तो वैसे ही रॉकेट का भी वही है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। सिमिलरली आपका ड्रोन जब फ्लाई कर रहे हो आप, ओके, आप ये आपको प्रैक्टिकली महसूस करना है, एज्यूम करना है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है, ये चीज मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको, राइट। ये डे 4 पे हम लोग देखेंगे, जब आप ड्रोन स्टार्ट करते हो, ड्रोन स्टार्ट होता है तो ड्रोन के मोटर्स घूमना चालू हो जाते हैं, ओके, दोनों मोटर्स, चारों मोटर्स आपके घूमना चालू हो जाएंगे, बट तभी आपका ड्रोन उड़ेगा नहीं। आप जब तक उसको थ्रॉटल नहीं देते हो, इतना थ्रॉटल नहीं देते हो जबकि वो अर्थ के ग्रेविटी से ऊपर आ जाए, राइट। सो जब तक आप थ्रॉटल नहीं दोगे तब तक वो ऊपर नहीं आएगा, और थ्रॉटल आने के बाद ऊपर आ जाएगा, और आप थ्रॉटल देते रहोगे तो ऊपर 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 चलता जाएगा, राइट। सो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद 6 फीट के बाद, 5 या 6 फीट के बाद आपको ड्रोन को एक जगह पे होल्ड करना है, यानी थ्रॉटल देना नहीं, होल्ड पे रखना है, एक जगह पे रखना है, उसको लॉइटरिंग मोड बोलते हैं उसको, वो पोजीशन पे आपको होल्ड करना है। ओके, ये आपका पहला स्टेप है लर्निंग ऑफ फ्लाइंग द ड्रोन। तो राइट फ्रॉम द ग्राउंड टू टेक ऑफ, ओके, दिस 2 एक्शंस। तो आपका ड्रोन को पहले आर्म करना है, यानी चालू करना है। आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, इग्नाइट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई लेकिन चालू नहीं, मतलब मूव नहीं हो रही है। सिमिलरली ड्रोन को स्टार्ट किया, आर्म किया, बोलते दैट इज कॉल्ड आर्मिंग द ड्रोन। जैसे आपने ड्रोन को आर्म किया, आपके ड्रोन के मोटर्स घूमना चालू हो गए। विद इन 3 सेकंड्स यू हैव टू एक्सीलरेट, विद इन द 3 सेकंड्स यू हैव टू गिव थ्रॉटल। आपको थ्रॉटल देके ड्रोन को ऊपर लेके आना है, एक सेफ हाइट पे। कितना हाइट पे, 5 फीट, 5 to 6 फीट के हाइट पे आपको लेके आना है ड्रोन। देन योर वर्क इज डन। आप वो लोकेशन जो आप रिमोट नीचे भी रख दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, ड्रोन वहीं पे वहीं फ्लाई होता रहेगा। ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, आपका जो ड्रोन जब घूमते हैं, मोटर्स घूमते हैं, तो क्या कर रहा है, एयर को पुश कर रहा है नीचे। तो एयर को नीचे पुश कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो एयर को इतना पुश कर रहा है कि वो अर्थ को मूव करने का सोच रहा है, लेकिन ड्रोन की तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतना पावर नहीं है। तो क्या होगा, ड्रोन ऊपर राइज होना चाहिए, तो ड्रोन आपका हवे में होना चाहिए। वही जगह पे आप समझो एक बड़ा सा कोई एस्ट्रॉइड आ गया, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, वो आया और अर्थ को हिट किया, तो क्या होगा, शायद अर्थ अपने जगह से हिल सकता है, लिपस्टब हो सकता है, या अर्थ पे गड्ढा हो सकता है, जो मीटियर्स बोलते हैं हम लोग, या एस्ट्रॉइड हिटिंग होता है, या जो भी होता है, बड़े बड़े पूरा ओल्डर टाइम्स में हुए थे, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुए थे। तो क्या हुआ था, बड़ा सा एक पत्थर आके अर्थ पे गिर गया था, तो बड़ा गड्ढा बन गया था,
जैसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में लोनार लेक के यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड गिरा था बहुत साल पहले, राइट? वो दैट्स बिकॉज इट्स सो ह्यूज, बट कंपेयर टू अर्थ ये रॉकेट या फिर आपका ड्रोन ये सब छोटी चीजें, एरोप्लेन, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। तो जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर कुछ नहीं होता है, तो अर्थ प्रेशर अप्लाई करते तो क्या होता है, वो अप्लाई उनके ऊपर होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हैपेंस। अगर मैंने आपको पुश करने की कोशिश की, अगर आप एकदम मजबूती से स्टेडी रहोगे तो क्या होगा, आप हिलोगे नहीं हिलोगे, उल्टा वो प्रेशर मेरे पे आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा, राइट? बाउंस बैक हो जाएगा लाइक दैट। तो सेम इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। तो आपका जब रॉकेट इग्नाइट होता है ऊपर जाता है और डाउन, रॉकेट विल राइट डाउन। सिमिलरली आपका घूम रहा है, ओके, प्रोपेलर्स हाई स्पीड में घूमना चाहोगे तो इट विल नॉट push the earth but it will try to rise on its own, right? So this is the action of opposite and equal reaction. Okay, clear? आपका ड्रोन क्यों उड़ता है? ड्रोन उड़ता है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, ये ध्यान में रखो। और एरोप्लेन उड़ता है बर्नौली प्रिंसिपल से। अभी बर्नौली प्रिंसिपल ड्रोन में कहां पे आ गया? आपके जो प्रोपेलर डिजाइन है, प्रोपेलर जो डिजाइन है वो बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल है। प्रोपेलर को अगर देखोगे तो प्रोपेलर का शेप जो है, ओके, प्रोपेलर का जो शेप है, इट आल्सो हैज अ लीडिंग एज एंड अ ट्रेलिंग एज। ये आपको साइड पे दिखाऊंगा बड़े प्रोपेलर्स। वहां पे हमने बड़े-बड़े प्रोपेलर्स भी रखे हुए जो वर्ल्ड वॉर 2 के एरोप्लेन्स जो थे ना, फाइटर एरोप्लेन्स, उनके प्रोपेलर्स वहां पे रखे हुए हैं साइड पे। ओके, तो हम उनको भी देखेंगे, उनका लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, direction of the propeller. Now, do you know that the propellers, there are two types of propellers. One is clockwise propeller and one is anti-clockwise. Okay, so दोनों different types of propeller है. So accordingly, they will generate the thrust in directions. Okay, तो ड्रोन पे अगर आप 4 देखोगे, 4 propellers लगे हुए हैं, तो उसमें से 2 propellers clockwise रहेंगे, 2 anti-clockwise होंगे. तो आपको वो उनको identify करने आना चाहिए. With help of once you identify the type of propellers, able to identify the front side of the propellers, front side of the drone and the back side of the drone, side of the drone, left side of the drone, all that things you should be able to know about. Okay, any questions here? No. Okay, so now if you see the aeroplane का जो shape अगर आप देखोगे, okay, now you see the front side is little bit heavier, whereas back side देखो आपने टेपर किया हुआ है, छोटा किया हुआ है, टेपर किया है। ये इसलिए किया रहता है कि अगर सपोज ये इक्वल है, okay, अगर ये इक्वल रहेगा, जैसे ये पेन है मेरा, इक्वल है, राइट? तो क्या होगा, इसमें इक्वल रहेगा तो देयर विल बी वन पॉइंट वेयर यू विल हैव अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे वो बैलेंस हो जाएगा। बट अगर मैं नोज हेवी करता हूं तो क्या होगा, मेरा हमेशा एरोप्लेन थोड़ा सा ऐसे रहेगा, राइट? हेवी, तो हमेशा हमारा नोज साइड शुड बी ऑलवेज हेवी। क्या होगा, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, हमेशा ड्रोन आपका एरोप्लेन ऐसा रहा तो क्या होगा, एयर ऐसा इंपैक्ट करेगा और चांसेस एरोप्लेन टॉपल होने का चांस होता है। हमेशा नोज शुड बी हेवी। एरोप्लेन फ्लाई भी होता है ना, थोड़ा सा देखो एंगल पीछे के साइड थोड़ा ऊपर रहता है, ओके, लैंडिंग के टाइम भी देखो आप ऐसे ही होता है, ओके, दे विल ऑलवेज हैव अ नोज हैवी। तो इसमें क्या होता है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आप सेंटर ऑफ लिफ्ट है, बट डिजाइन के टाइम ऐसे एरोप्लेन बनाया जाता है कि थोड़ा सा वेट आगे के साइड ज्यादा हो। तो आगे की साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से थोड़ा आगे मूव होगा, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी ऑलवेज लिटिल बिट ऑन फ्रंट साइड। इससे क्या हो जाएगा, आपका एरोप्लेन बैलेंस्ड रहेगा। ओके, आप क्या करोगे, आप लिफ्ट से बैलेंस करोगे एरोप्लेन को। अगर आपने मैनेज नहीं किया, अगर सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे है, तो क्या होगा, आपका ये एरोप्लेन हमेशा ऐसे पोजीशन करेगा, तो हमेशा एयर उसको हिट करेगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अगर इंजन बंद करते तो ऑटोमेटिक वेट की वजह से क्या होगा, आगे झुकेगा, अपने आप झुकेगा वो वेट की वजह से, बिकॉज वेट आगे ज्यादा है, तो आपका एरोप्लेन आगे झुकेगा तो ऑटोमेटिक आपका मैनेज करने में इजी हो जाएगा। ओके, सो सेंटर ऑफ लिफ्ट इज द एवरेज ऑफ द लिफ्ट फोर्स टू व्हिच ऑल द लिफ्ट इज कंसीडर्ड टू एक्ट इट्स सेम एज द सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी कि आपकी जो एक्सिस है, longitudinal axis, vertical axis, lateral axis, ओके, तीनों एक्सिस जहां पे मिलते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ लिफ्ट।
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट एट विच एयरक्राफ्ट वुड बैलेंस. अभी सेंटर ऑफ लिफ्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे एक जगह पे हो सकते हैं, बट टू फ्लाई अ ड्रोन प्रॉपरली नॉर्मली जो डिजाइनर वो क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लिफ्ट से आगे करता है ताकि आगे के साइड थोड़ा वेट ज्यादा रहे. इसीलिए आप देखो कोई भी एरोप्लेन जब डिजाइन किया जाता है आगे का शेप जो रहता है राउंड और बड़ा रहता है, राइट. अगर बड़े कार्गो ड्रोन्स भी देखो उनका आगे का शेप और बड़ा बनाया रहता है, राइट. पीछे साइड छोटा रहता है. So they want nose to be heavy always. Okay, that is how the aeroplane is being designed. Any questions over here? No. ये थोड़ा सा मतलब समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. As you read, as you keep on understanding, look into it, थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे ना, थोड़ा टाइम के बाद आपको समझना चालू हो जाएगी. फर्स्ट इमीडिएटली ऐसा मतलब फर्स्ट शॉट में आपको पूरा माइंड में बैठ नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा. जब आप प्रैक्टिकली भी देखोगे समझोगे तब आपको वो क्लैरिटी आना चालू हो जाएगा. ठीक है. सो एरोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ गैसेस इंटरैक्ट विद द मूविंग बॉडीज. गैसेस मतलब क्या? एयर, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? इट्स ऑल अबाउट गैस, राइट. हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस है. ये गैस जो एटमॉस्फेयर, मूविंग बॉडी यानी कि आपका कार हो सकता है, शिप हो सकता है, बस हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, रॉकेट हो सकता है. ऑल दीज आर मूविंग बॉडीज. बर्ड्स है, हम लोग चल रहे हैं, रोड पे भी चल रहे हैं तो हम पे इफेक्ट हो रहा है ना. हवा कभी कभी तेजी से आते तो हम चल नहीं पाते ठीक से, बहुत जोर से हवा आती है तो, राइट. तो इंजीनियर्स अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स टू डिजाइन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. अभी हम लोग देखा रहेगा मुंबई में हमारे पास पहले कैसे थे, 2 माले की बिल्डिंग, 3 माले की बिल्डिंग है, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 10 फ्लोर. 10 फ्लोर तक बिल्डिंग अगर है, 15 फ्लोर तक बिल्डिंग है तो इतना वरी पार्ट नहीं. लेकिन जैसे ही आपकी बिल्डिंग 20 फ्लोर की हो जाती है, 30 फ्लोर की हो जाती है, 40 फ्लोर की हो जाती है, जितनी बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी उतना उसके ऊपर एयर का प्रेशर इम्पैक्ट करना चालू हो जाएगा. यू हैव टू डिजाइन द हाई टावर्स एरोडायनामिक्स. तो आप देखो जो भी 30-20 माले की बिल्डिंग है, 20-25-30 माले की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर, 30 फ्लोर, they are always have a curved shape. They will never have a sharp edges या hard surfaces नहीं. They will always have a curved surface. आपने bridges देखो, classic example of a high tower building is Burj Khalifa. अब बुर्ज खलीफा देखो, पेट्रोनस टावर्स देखो, मलेशिया के जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर्स, स्काई स्क्रैपर्स है, आप देखो, they will be always designed aerodynamically so that the air flows smoothly around the body of the building, जिससे कि एयर का प्रेशर जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे ज्यादा ना हो. सिमिलरली बड़े बड़े ब्रिजेस डिजाइन जब करते हैं तो उसमें भी एरोडायनेमिक्स यूज होता है. ओके, सो द प्राइमरीली कंसर्न ऑफ एरोडायनेमिक्स आर द एयरक्राफ्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स. सो एरोडायनेमिक्स मोस्टली हमारा एयरक्राफ्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है या हाई टावर बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, वहां पे हम लोग एरोडायनेमिक्स का अप्लाई करते हैं. एरोडायनेमिक्स कम्स इनटू द प्ले इन द स्टडी ऑफ फ्लाइट and the science of building and operating an aircraft, which is called as aeronautics. Aeronautics is nothing but about the aeronautical engineering कर रहा हूँ या aeronautics सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, तो उसमें आप aerodynamics का कैसे study और flight और science of building and operating an aircraft in air, that study is called as aeronautics. Aeronautical engineering. Aeronautics. So if you see any aeroplane, okay, if you see any aeroplane, it will have certain control surfaces. Okay, there are 2 types of control surfaces. One is called primary flight controls, and there is something called secondary flight controls. Now, primary flight controls will be always available on any of the aircraft. अब दुनिया में कोई भी विंग का एरोप्लेन, फिक्स विंग एरोप्लेन को, उसके ऊपर primary control surfaces will be always there. सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल्स जो है, ओके, या सरफेसेस जो है, मे बी देयर और मे नॉट बी देयर. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल. प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स आर इन कलर्ड ब्लू ओवर हियर. दे आर ailerons, rudder and elevators. ओके, स्पॉयलर्स, फ्लैप्स, ये सब एडिशनल्स. ओके, स्पॉयलर्स कभी-कभी होंगे, नहीं होंगे, जरूरी नहीं, बट ailerons, rudder and elevator, these are the 3 primary controls which will be always available on all the aircraft.
बड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट, छोटा से छोटा एयरक्राफ्ट, all the aircraft you will have primary flight controls. Whereas see the bigger aeroplanes like Boeing है या Airbus 320, Airbus के जो भी बड़े airplanes हैं, all those big aeroplanes will have also secondary flight controls like your spoilers, flaps, slats, trim tabs, all that thing. Okay, इतना ध्यान में रखो. प्राइमरी क्या है? एरेलॉन, एलिवेटर्स एंड रडर्स. आपका एरेलॉन्स कभी कहाँ पे है? एरेलॉन्स आर ऑलवेज ऑन द विंग्स. एरेलॉन्स आपका विंग्स के ऊपर रहेगा, दोनों साइड पे, एज पे रहेगा. ओके, और वो एरेलॉन्स को कंट्रोल करने से क्या होता है? आपका रोल मोशन होता है. रोल मोशन, रोल राइट, रोल लेफ्ट, रोल राइट, रोल लेफ्ट. तो एरोलॉन से क्या कंट्रोल कर रहे हो आप? रोल मोशन ऑफ द एयरक्राफ्ट. ओके, रोल मोशन ऑफ द एयरक्राफ्ट. जबकि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर जो टेल्स पे है, ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो है जिसमें आपका प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोलर है, उसका नाम है एलिवेटर. ओके, टेल के पास जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, राइट, पीछे का शेप जो है, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स है, फ्लैप्स जैसे बोलते हैं उसको, ओके, दोज आर कॉल्ड एज एलिवेटर्स. एलिवेटर क्या करता है? जब एलिवेटर आप नीचे करते हो तो क्या होता है? आपका ड्रोन ऊपर उड़ना चालू होता है. ऊपर करते हो तो नीचे उड़ना चालू होता है. अकॉर्डिंगली कंट्रोल्स डिफाइन होता है. तो एज यू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेटर, आपका एरोप्लेन पिच अप होगा या पिच डाउन, पिच अप या पिच डाउन होगा. एरोप्लेन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बाय एलिवेटर्स. ओके, व्हिच इज ऑन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर. हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, राइट. दूसरा है वर्टिकल स्टेबलाइजर यानी टेल. आप बोलते हैं टेल, बड़ी टेल, ऊबी टेल, राइट. तो टेल पे क्या है? देयर इज अ सरफेस आगे जो रडर बोलते हैं. फिर वो ऐसे ऐसे घूमता है. रडर जैसे आप चेंज करते हैं तो क्या होता है? आपका एरोप्लेन का डायरेक्शन चेंज होता है, लेफ्ट राइट. ओके, दैट डायरेक्शन चेंजिंग इज कॉल्ड एज याव मोशन. ओके, तो एरोलॉन से क्या हो रहा है? रोल मोशन, रोलिंग हो रहा है. रोल राइट, रोल लेफ्ट. एलिवेटर से क्या हो रहा है? पिच अप, पिच डाउन. और रडर से क्या हो रहा है? रोल से क्या हो रहा है? योर राइट, एरोप्लेन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साइड चेंज हो रहा है, राइट. लेफ्ट में चेंज होगा, राइट में चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर रडर. ओके, बाकी के जो सेकेंडरी कंट्रोल जो है, जैसे स्लैट्स है, स्पॉयलर्स है, फ्लैप्स है ना, ट्रिम टैब्स भी होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे और कंट्रोल्स रहते हैं. दोज आर सेकेंडरी. वो होंगे भी होंगे, नहीं होंगे तो भी नहीं होंगे, समथिंग लाइक दैट. ओके, डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन ऑफ द एरोप्लेन. अगर है तो वो क्या करते हैं? आइदर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द विंग स्पैन, राइट. आपका फ्लाइट मतलब ये नॉर्मली फ्लैप्स कभी यूज होते हैं जब आप टेक ऑफ करते हो तो फ्लैप एक्सटेंड होता है, यानी कि क्या होता है? विंग का साइज बड़ा हो जाता है, तो आपको लिफ्ट जल्दी मिले, फास्टर आपका एरोप्लेन जल्दी ऊपर हवे में उड़े. बट जैसे आपका हवे में आ गया एरोप्लेन, फ्लैप अंदर चले जाते हैं और फिर नॉर्मली आपका स्टेडी स्टेट फ्लाइट होता है. जब आपको डाउन करना है, आप नीचे एरोप्लेन लैंड कर रहे हो, तो लैंड करते तो क्या होता है? स्पॉयलर्स रहते हैं. स्पॉयलर्स क्या रहते हैं? बीच में रहते हैं, तो ऐसे फ्लैट रहते हैं. जैसे आपने लैंड किया और आपको स्लो करना है तो ऐसे ऊपर आ जाते हैं. वो क्या करता है? वो ड्रैग क्रिएट करता है. यार एक्चुअली इंक्रीजिंग द टाइम. इससे आपका लैंडिंग जैसे लैंड हो गया ना आपका एरोप्लेन, सीधा स्पॉयलर्स ऊपर आ जाते हैं. ऊपर आते तो ड्रैग बढ़ता है. ड्रैग बढ़ता है तो क्या होता है? आपका एरोप्लेन ऑन द रनवे स्लो डाउन हो जाता है, रुक जाता है. वो रुकना मतलब ड्रैग क्रिएट हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. तो वो पायलट के लिए इजी हो जाता है कि आपको प्लेन को रोकने के लिए. नहीं तो वो स्पीड रहता है ना, उसको मोशन रहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. या आपने लैंडिंग कर रहे हो तो आप उतर रहे हो तो स्पीड में उतरे, फोर्स में. आप ऑलरेडी फोर्स के साथ उतर रहे हो, आप उतर रहे हो, है ना. व्हील्स आपकी कंटिन्यूसली, मतलब रोकना कैसा है? तुरंत तो ब्रेक तो नहीं लगा सकते हो, राइट. नहीं तो क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएगा. तो आप क्या करते हो? उसको स्लो डाउन करना पड़ता है. तो आप स्पॉयलर्स, राइट. स्पॉयलर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉयलर्स. यानी क्या कर रहा है? आपका स्पीड को स्पॉइल कर रहा है वो. फ्लैट्स भी वही करते हैं. स्लैट्स और फ्लैप्स नॉर्मली क्या होता है? विंग का साइड आपका इंक्रीज कर देता है, इससे आपको मैक्सिमम लिफ्ट मिले. ओके, तो फ्लैप्स एंड स्लैट्स आर यूज्ड फॉर लिफ्ट. So you are not audible. Okay. Can you repeat again? Yeah, now you are. I am saying primary flight controllers are very important.
Remember, on the wings they are ailerons, on horizontal stabilizers they are elevators, on vertical stabilizer it's radar. Radars. Ailerons are responsible for roll motion. Elevators are responsible for pitch up and pitch down motion. Radar is important for yaw motion, that is your left or your right. That is, you are changing the heading of your aeroplane. You are changing the head. Right? सामने आप जैसे सामने जा रहा है तो आप उसको change कर रहे हो. Right? That is called motion of the aeroplane. And the secondary control जो है वो आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल सेस्ना एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, तो इसमें 2 सीटर हो सकता है, 4 सीटर हो सकता है, 6 सीटर हो सकता है, छोटा एरोप्लेन है. उसमें जरूरी नहीं कि सेकेंडरी कंट्रोल्स रहेंगे जैसे फ्लैप्स, स्लैट्स, ये सब चीजें नहीं होगी. ओके, उसमें सिर्फ एरोलॉन्स रहेगा, एलिवेटर्स रहेगा, रडार रहेगा. कोई थोड़ा सा बड़ा साइज का एरोप्लेन में शायद फ्लैप्स हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी ऑल द अदर थिंग्स विल बी. So depending upon the aeroplane and the design, ये additional surfaces हो सकती है. लेकिन बड़े एरोप्लेन में होगा, जैसे बोइंग है, 7347 है, एयरबस है, जो बड़े एरोप्लेन है उसमें ये सब चीजें होगी, क्योंकि उतना बड़ा साइज है ना, सरफेस है, तो उतना वो बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं. Okay, so that's how we talk about. So ailerons are for roll. It is on the longitudinal axis for lateral stability. Elevator is for pitch up. Elevator is for pitch up and pitch down. और lateral axis पे होता है, देखो आप, right? Lateral axis मतलब क्या है? आपका जो wing का axis है. Okay? Vertical axis क्या है? आपका straight, नीचे से लेके ऊपर. Okay? That is vertical axis. तो vertical axis पे क्या होता है? आपका radar. Okay? तो vertical axis पे आपका drone या aeroplane आपका left या right side move होगा. राइट, रोल में क्या हो रहा है? रोल आपका एरोप्लेन सिर्फ मूव हो रहा है, मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम ही है, फ्रंट ही है, बस साइड हो रहा है, रोल हो रहा है. रोल लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा. राइट, व्हेयरएज रडार में क्या हो रहा है? डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है. आपका सामने नॉर्थ को पोस्ट कर रहा है तो आपका ईस्ट पे जा सकता है या वेस्ट पे साइड जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर मोशन यू आर डूइंग. ओके, एनी क्वेश्चंस हियर ऑन द एक्सिस ऑफ फ्लाइट? सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है आपको. एरोलॉन इज रिलेटेड टू रोल, एलिवेटर इज रिलेटेड टू पिच अप एंड डाउन, एंड रडार इज रिलेटेड फॉर यॉ. यॉ क्या होता है? डायरेक्शनल. देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है डायरेक्शन. राइट, ये लॉन्जिट्यूडिनल मोशन है, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ऊपर नीचे. राइट, और आपका एरोलॉन मतलब क्या? रोल मोशन, लैटरल मोशन. राइट, now when you are flying a aeroplane, what happens? It takes a phase of flight. Okay, तो normally आपका रनवे पे आपका एरोप्लेन खड़ा है, फिर आप एरोप्लेन मतलब उनको परमिशन मिलता है, जैसे ही आपको पायलट को परमिशन मिलता है वो अनाउंसमेंट करता है कि वी आर गोइंग फॉर टेक ऑफ. राइट, तो क्या होता है? वो इमीडिएटली जगह से टेक ऑफ तो नहीं होता है एरोप्लेन. तो पहले क्या होता है? वो रनवे पे रन करता है, भागता है, स्पीड लेता है. एक सर्टन स्पीड लेने के बाद सर्टन एरिया का मतलब ऑलमोस्ट I would say 3/4 of runway या 2/3 of runway आपका क्या होता है? एरोप्लेन बहुत स्पीड में तेजी से भागता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टेक ऑफ होता है. तो दैट मोशन इज कॉल्ड टेक ऑफ, दैट पोजीशन इज कॉल्ड टेक ऑफ. ओके, फॉर बलून्स, हेलीकॉप्टर्स और सम स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नो रनवे इज नीडेड. ये इसलिए क्योंकि बलून तो आपका डायरेक्टली जगह पे रेज होता है, हेलीकॉप्टर भी आपका डायरेक्टली रेज होता है. कुछ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स है. फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मतलब ये टॉकिंग फ्रॉम अ ड्रोन पर्सपेक्टिव, जिनके लिए रनवे की जरूरत नहीं है. कुछ छोटे छोटे एयरप्लेन है, जैसे मेरे पास छोटा एक एरोप्लेन, मैं इसे हाथ से फेंक सकता हूँ तो वो हवा में उड़ना चालू हो जाता है. ओके, क्योंकि उतना प्रेशर मैं दे सकता हूँ. बट अगर मैं बोइंग को तो नहीं कर सकता ना, बोइंग तो मेरे से भी काफी बड़ा है. राइट, आई कैन नॉट डू इट. तो उसको रनवे पे फ्लाई करना ही पड़ेगा. बट छोटा एरोप्लेन या फिर देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड कैटापल्ट मैकेनिज्म, जिससे आप स्प्रिंग लोडेड रहता है, वो एकदम से स्पीड में वो एरोप्लेन को हवा में फेंकता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड कैटापल्ट मैकेनिज्म. ओके, वेयर यू रियली डोंट रिक्वायर अ रनवे टू फ्लाई विद. ओके, दैट इज योर टेक ऑफ. ओके, सो द मोशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द एयर, ओके, दैट मोशन इज कॉल्ड एज टेक ऑफ. ओके, अभी आपका टेक ऑफ हुआ. टेक ऑफ होने के बाद क्या हो रहा है? आप एक 10,000 फीट पे, 15,000 फीट पे, 20,000 फीट पे आप क्या कर रहे हो?
एरोप्लेन को लेके जाते हैं और एक स्टेडी फ्लाइट में जाते हैं, Stable. राइट? दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लाइट. द फोर्स by which an object moves through an atmosphere without contact with the surface. अभी surface पे नहीं है, ऊपर है, हवा में है. This can be achieved by generating aerodynamics lift associated with the propulsive thrust. यानी कि आपकी wings जो है already एक lift create करके ऊपर हवा में fly हो रहा है, flow हो रहा है. वो maintain करने के लिए क्या चाहिए? Propulsive thrust. यानी continuous आपका engine चालू होना चाहिए. Propulsive thrust continuous होना चाहिए. वो आपका इंजन देता है. अगर इंजन बंद पड़ गया तो क्या होगा? एरोडायनेमिक्स की वजह से वो एरोप्लेन तो फ्लाई होगा बट थोड़े टाइम के बाद वेट की वजह से वो नीचे चालू हो जाएगा. दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर लैंडिंग. फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई से टेक ऑफ किया, फ्लाई किया, सूरत गया, वडोदरा गया, अहमदाबाद गया, जयपुर गया और अभी मुझे दिल्ली से लैंड करना है. जैसे ही मुझे पता चला कि अभी मेरा 20 किलोमीटर अहेड अभी मेरा एयरपोर्ट है, मैं लैंडिंग प्रोसीजर चालू कर दूंगा. तो आई एम फ्लाइंग एट 20,000 फीट. I will ask the ATC for landing permission. They will say descend to 10,000 feet. So मैं धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते नीचे भी आना चालू करूँगा. और इंजन का जो पावर है वो मैं कम कर रहा हूँ, राइट? स्पीड है मेरा क्योंकि मैं मोशन में हूँ तो मेरा स्पीड रहेगा, बट मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा उसका जो कंटिन्यूस मेंटेन करने का जो स्पीड था वो कम कर रहा हूँ. तो क्या होगा? वो धीरे 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 स्लो भी हो रहा है और नीचे भी आ रहा है. So I am making my aeroplane ready for landing. तो मैं धीरे 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 जा रहा हूँ. Okay, it is the last part of the flight where airborne aircraft returns to ground. When the flying object returns to ground, that process may be called as touchdown. So finally, जब मेरा aeroplane नीचे land हो जाएगा, that process is called landing or it is also called as touchdown. Okay, so हम लोग ड्रोन में बोलते हैं टेक ऑफ करो, फ्लाइट मेंटेन करो, लैंडिंग करो, touchdown करो. So these are the words which will be talking. So I will say, okay, park, please take off your drone. आप drone को take off करोगे, आप flight में रखो. I might tell you some exercise like park, please pitch forward. आपको pitch forward करना है, drone को आगे लेके जाना है. Pitch backward बोलूँगा तो pitch back करना है. Roll right करने बोलूँगा तो roll right करके दिखाना है. Roll left करने बोलूँगा तो roll left करने बोला है. Your right करना बोलूँगा तो your right करके दिखाना है. Your left करने बोला है. तो ये सारे जो एक्टिविटीज अभी हमने सुने बोले एरोप्लेन में, अभी पायलट फ्लाई करता, पायलट अंदर है, अभी हम ड्रोन के बाहर है, तो ड्रोन को उड़ते हुए हम देख रहे हैं, तो हमको वो एक्सरसाइज रिमोट के साथ वो करना है वहां पे, राइट? तो हम कमांड देंगे अपने रिमोट से, हम उसको कमांड देंगे पिच अप, पिच डाउन, थ्रोटल अप, थ्रोटल डाउन, है ना? पिच अप नहीं होता है, सॉरी, पिच फॉरवर्ड, पिच बैक होता है, थ्रोटल अप, थ्रोटल डाउन होता है, योर राइट, योर लेफ्ट होता है, रोल राइट होता है, रोल लेफ्ट होता है. तो ये 4-6 मोशंस है जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं. ओके, थ्रोटल आप एक ही टाइम पे देते हो. आप नीचे से ग्राउंड से ऊपर जाके 5 फीट पे या 6 फीट पे अपने ड्रोन रख दिया तो वो पोजीशन आपकी लॉक हो जाएगी. वो पोजीशन पे आपको बाकी के मैन्यूवर्स करने हैं, जैसे कि आपको पिच फॉरवर्ड, पिच बैक, रोल राइट, रोल लेफ्ट, योर राइट, योर लेफ्ट, ये सब करने हैं. फिर आपको ड्रोन आगे फ्लाई करके स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, सर्कल बनाना है. यू नो ऑल दिस प्रोसीजर्स व्हिच विल बी टेलिंग यू, टीचिंग यू. जब आप सिमुलेटर सेशन में आओगे तभी आपको ये सारा चीज सिखाया जाएगा. अभी देखो, जब आप फ्लाई कर रहे हो ना, जब आप फ्लाई कर रहे हो तब मैं नहीं फ्लाई करा रहा हूँ, और तभी क्या कर रहे हो, समझो अभी पार्क और आप दोनों हो फ्लाई कर रहे हो. तो अभी नॉर्मली क्या होता है, हमारा फ्लाइंग सिचुएशन में हम लोग हमेशा 2 जन यूज करते हैं. जैसे अपना एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो एक पायलट रहता है और एक को पायलट रहता है, राइट? को पायलट. अभी भी 2 जन फ्लाई, कोई भी एरोप्लेन फ्लाई करते तो 2 जन फ्लाई करते. So voice is not audible. Voice breaker. Similarly, whenever we are giving you a drone training, what we do is we normally make sure that we have 2 students. Okay, that's why we always start batches in even numbers. कि 2 स्टूडेंट होना चाहिए, 4 स्टूडेंट होने चाहिए, 6 स्टूडेंट होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 8 स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि 2-2 के पेयर बन जाए. तो क्या होता है, एक पायलट, एक को पायलट. ठीक है, सो यू कैन वाइस वर्सा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब पार्क फ्लाई कर रहा है, तो पार्क फ्लाई कर रहा है, पार्क के हाथ में रिमोट कंट्रोलर है, तो पार्क बिकम्स पायलट, whereas Kundan becomes the co-pilot. So as a co-pilot, his responsibilities are there. He also has to help Park to do the flying properly. Make sure that Park is doing everything proper as per the instructor's instruction. Similarly, जब Kundan fly कर रहा है, तो Park becomes co-pilot, Kundan becomes the pilot. Okay, so pilot की एक्टिविटी एक होती है, co-pilot की एक एक्टिविटी. ये सिनेरियो में हम लोग ट्रेन करते हैं. और हमने क्या देखा कि अगर सपोज एग्जांपल समझो कुंदन नहीं है,
पार्थ फ्लाई कर रहा है, या फिर कुंदन सिर्फ फ्लाई कर रहा है, पार्थ नहीं है, तो कुंदन क्या करेगा, अपना फ्लाई करना, वो अपना दिमाग लगाना चालू करेगा, अपना दिमाग चालू करना, वो अपने दिमाग से कुछ करने की कोशिश करेगा। बट अगर वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कौन देखेगा, इंस्ट्रक्टर देखेगा, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज इंस्ट्रक्टर विल बी देयर, राइट। इंस्ट्रक्टर पूरा टाइम उस पर ध्यान नहीं दे सकता है। अभी मल्टीपल लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो क्या करोगे, मैं सबको नहीं देख सकता हूँ सब क्या कर सकते हो। नॉर्मली ये सिनेरियो में आपका को पायलट बिकम्स योर गाइड, को पायलट हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स प्रॉपर्ली। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप को पायलट के साथ बात कर सकते हो, राइट। नॉर्मली देखो अभी हम लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नया चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, हमको कुछ चीज समझ में नहीं आता, हम तुरंत इंस्ट्रक्टर को या प्रोफेसर को या गाइड को डायरेक्ट पूछने का नहीं सोचते, राइट। हम लोग सोचते हैं क्या शायद सर बोलेंगे क्या मेरे को फालतू कुछ पूछ रहा है, बेवकूफ पूछ रहा है, या इतना सब सिंपल चीजें समझ में नहीं आ रही, ऐसे नॉर्मली अपने माइंड में रहता है, राइट। तो हम लोग नहीं, तो नॉर्मली लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं पार्थ को पूछूंगा, अरे पार्थ ये कैसे करना है पता है क्या, कॉजुअली, बिकॉज़ वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। तो जब दो जन फ्लाई करते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर योर लर्निंग, ओके, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर लर्निंग। नहीं तो क्या होता है, सिंगल पर्सन अगर फ्लाई करने की कोशिश करता है ना, वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है, लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर इन हिज माइंड, वो हेजिटेट करता है क्वेश्चन करने की। लेकिन जब दो जन एक साथ फ्लाई करते हैं एज अ टीम, इट्स अ वेरी इफेक्टिव लर्निंग फॉर यू। ये आप जब खुद करोगे, जब दोनों जन फ्लाई करोगे, तब आप महसूस करोगे कि कितना इफेक्टिव लर्निंग हो गया और कितना अच्छी तरह से आपने ड्रोन फ्लाइंग सीखा, ओके। लेकिन कभी कभी सपोज कभी कभी क्या होता है, दो तीन स्टूडेंट आ जाते हैं, तो अभी जैसे लास्ट एक बैच में 3 ही स्टूडेंट थे, तो चौथा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम रीजन। तो अभी तीसरा स्टूडेंट को क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तीन का सर्कल बनाया। तो कभी कभी एक मतलब एक उसको बनता था पायलट, कमांड पायलट, को पायलट, यू नो, वाइस वर्सा एंड ऑल दैट। तो तीनों के बीच में हमने सर्कलिंग कर दिया कि अभी तुम पायलट बनो, अभी तुम को पायलट बनो, अभी तुम इसके को पायलट, ऐसे सर्कल करके। सपोज कोई नहीं होता तो चौथा पर्सन मैं बन जाता, तो मैं आई वुड हैव एक्टेड एज अ को पायलट टू हिम एट अ पॉइंट इन टाइम, जस्ट टू हेल्प हिम फॉर लर्निंग पर्पस। बट सिंस आई एम अ इंस्ट्रक्टर, he may not be open or hesitate to ask me the questions, okay। लेकिन अगर पायलट रहता, को पायलट रहता, तो क्या होता है, दोनों का एक दूसरे के बीच में टीमिंग आ जाता है, दोनों हेल्पफुल हैंड से सीखना चालू करते हैं, लर्निंग हो जाता है, इफेक्टिव लर्निंग हो जाता है। अलोन पर्सन कैन नॉट लर्न थिंग्स ऑन इट्स ओन, इट टेक्स टाइम। Whereas जब आप दो जन साथ में पढ़ाई करते हो, जैसे अभी मैंने ड्रोन रूल्स था, ड्रोन रूल्स आपको सिखाया, 55 रूल्स है, अभी 55 रूल्स मेरे को अगर सीखने हैं तो मैं वो डॉक्यूमेंट लेके बैठूंगा, रीड करते रहूंगा, मैं समझूंगा, मैं सोचूंगा मेरे को आ रहा है। लेकिन जब मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ और मुझे सडनली मेरे एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज रूल नंबर 26, मुझे याद नहीं रहेगा, मतलब भले मैंने पढ़ाई रहेगा लेकिन मुझे याद नहीं रहेगा। यही चीज अगर पार्थ और कुंदन दोनों साथ में पढ़ते हैं, मे बी नॉट नेसेसरी यू आर स्टेइंग टुगेदर। फॉर एग्जांपल पार्थ बोलता है कि मैं चलो आज मैं पूरा रीड कर लेता हूँ, कल अपन जूम कॉल पे जाएंगे, तुम मुझे क्वेश्चन पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, कुंदन विल अपीयर एंड पार्थ विल आस्क द क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, बॉडी लर्निंग होता है। तो जैसे हमने ट्रेनिंग किया था, तो हमारा मैं और मेरा कलीग था, हमने बॉडी ट्रेनिंग, तो हम लोग क्या करते थे, एवरी अल्टरनेट डे, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को हम लोग कॉल करते थे, क्योंकि मेरा जो बॉडी था वो सूरत में रहता है। तो हम लोग क्या करते थे, एवरी ट्यूसडे को शाम को 7 बजे कॉल करते थे, 15 मिनट का कॉल रहता, 15-20 मिनट का कॉल करते थे, और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछने का, कुछ भी रैंडम 5 क्वेश्चन पूछने का। दैट इज हाउ वी यूज्ड टू प्रिपेयर। तो मैं सोचता था, अरे मेरे को अभी वो आज मेरा सेशन है, आज मुझे मेरा कलीग मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, तो आई हैव टू प्रिपेयर, आई विल प्रिपेयर एंड कीप रेडी। अगर मैं इस तरह से लर्निंग करूंगा तो मेरा लर्निंग इफेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी लर्निंग। तो सिमिलरली जब हम फ्लाइंग करते हैं तो हम लोग बड़ी पायलट को पायलट होगा तो आप इजीली फ्लाई कर सकते हो, अच्छी तरह से फ्लाई कर सकते हो, अच्छी तरह से लर्निंग भी हो जाता है और आपके एक्सरसाइज भी अच्छे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एम्फसाइज यू टू कम एज अ ड्यूअल फ्लाइंग, ओके। क्योंकि आप जब देखो, आपको अगर अच्छा सीखना है फ्यूचर में, अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप अलोन फ्लाई कर रहे हो, बट कभी कभी आप आपके साथ एक बंदा रख सकते हो एज अ को पायलट। ही मे नॉट बी हेल्पिंग यू इन फ्लाइंग, he can help you some offline lot of activities. He can observe, जब आप फ्लाई कर रहे हो तो ड्रोन के नीचे कोई जा रहा है, आ रहा है,
देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोई तो बंदा चाहिए ना आपके साथ. That is why you required a second person with you whenever you are flying a drone. Okay, not necessarily he has to be a pilot. Okay, pilot रहा तो well and good, अच्छी बात है. तो आप as a team fly कर सकते हो. He also knows what it is. Okay, जैसे आपने देखा रहेगा वीडियोग्राफी में भी अगर आपने देखा रहेगा एक असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर रहता है और सिनेमेटोग्राफर 2 जन रहते हैं हमेशा, राइट? क्योंकि सिनेमेटोग्राफर जो रहता है ना वो स्क्रीन में देखते रहता है, उसको उधर सीन क्या चल रहा है वो उसको फ्रेम में कैप्चर वो ही सीइंग थ्रू द फ्रेम, बट देयर इज अ असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर हु इज सीइंग द एंटायर सीन. दोनों का डिस्कशन में वो एडी वीडियोग्राफी होता है. या राइट, आई थिंक Parth must be aware of this also. Yeah, it's called AD, assistant director. Yeah. Right. So similarly, जब 2 जन साथ में करते हैं ना तो बहुत इफेक्टिव फ्लाइंग होता है. That is what we have also observed because हमारा जो एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग में हम लोग ऐसे ही करते हैं, पायलट और को-पायलट को So you're not audible. Yeah. When Kundan So when Kundan is flying, okay, that time Parth is also learning. When Parth is flying, Kundan is also learning. So आपका डबल फ्लाइंग हो रहा है. नहीं तो क्या होता है ना, अगर मैं सिर्फ पार्थ को लेके जाता हूँ फील्ड पे फ्लाइंग करने के लिए, कुंदन उधर डगआउट में बैठा हुआ है, उसका ध्यान ही नहीं है फ्लाइंग के ऊपर, वो अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, या वाइस वर्सा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? ऐसा होता है मोस्टली, और इसीलिए हम लोग बैच साइज भी बड़ा नहीं रखते थे. तो नॉर्मली हमारे पास 20 स्टूडेंट का ऑथराइजेशन है. So we always limit our drone flying max to max 6 students only. 6 students के ऊपर हम लोग कभी बैच बनाते ही नहीं है. हाँ, 10 स्टूडेंट का कभी बनाते हैं जब हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें भी हम थियरी 10 स्टूडेंट के लिए लेते हैं, लेकिन फ्लाइंग के लिए 5 ही स्टूडेंट लेके जाते हैं एट अ टाइम. वी ओनली टेक 5 स्टूडेंट्स, मोर देन नॉट दैट. ओके, क्योंकि हमारा वो लिमिटेशन हमको पता है, और हमको इफेक्टिव ट्रेनिंग देने के लिए हमको पता है कि एट अ टाइम हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी कैन मैनेज. ओके, अननेसेसरी वो क्राउड रहेगा, फिर उधर जमा रहेगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, फालतू की बातें चलती रहेंगी, फिर वो ट्रेनिंग का ट्रेनिंग नहीं रहता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी लिमिट द बैच साइज. क्लियर? Yes. But we like both also will be flying, right? यस. आपको इंडिविजुअली ड्रोन फ्लाई करना है, आपको ड्रोन फ्लाई करना है. मैं नहीं फ्लाई करने वाला हूँ, आप लोग फ्लाई करने वाले हो. मैं आपको सिखाऊंगा एकदम इफेक्टिव और परफेक्ट. आप मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा अगर आप करोगे तो आप 2 दिन के बाद एकदम कॉन्फिडेंट फ्लाइंग हो जाएगा आपका. Okay. बट नॉट नेसेसरी. देखो, 2 दिन में आपको मैंने सिखा दिया, 2 दिन में आपको मैंने ड्राइविंग सिखा दिया, तीसरे दिन आप फरारी ड्राइव करके फॉर्मूला 1 में नहीं जा सकते हो, राइट? आपको फॉर्मूला 1 के लिए 1 साल चलाना पड़ेगा गाड़ी, तब जाके आप एक्सपर्ट ड्राइवर में. लेकिन आपको जो बेसिक्स समझने चाहिए ड्रोन्स के या ड्राइविंग के, आपको जो बेसिक्स समझने चाहिए वो इंस्ट्रक्टर आपको सिखाता है, राइट? तो फॉलो करके आपको प्रैक्टिस करना है. आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने जब अच्छी प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूस करोगे, you will become a very effective pilot. Effective. Sorry for your interruption. Like after we will be completing course. So what drone you suggest to we should operate like? देखो, अभी आप जब फ्लाई आपने लाइसेंस लिया तो आपने कौन सा लिया? रोटर क्राफ्ट स्मॉल, आर पास, राइट? BLS. तो आइदर ड्रोन का अगर DJI का लेना चाहते हो तो DJI 3S ले सकते हो, Mavic Pro 4 ले सकते हो. What it depends upon your requirement and needs. Yeah. No, but I'm just asking in general. So these drones are good to practice. Air 3S is the best drone, I would say. या फिर Mavic Air 3S. Air 3S. Okay. Air 3S. DJI का है लेकिन बेस्ट ड्रोन है as of now. या फिर उससे अच्छा चाहिए तो Mavic 4 Pro. Nothing like it. मतलब दोनों बेस्ट है फोटोग्राफी के लिए. बेस्ट है ड्रोन फॉर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए. Okay, Mavic 4 तो मतलब सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं है उसका. It has new 360 gimbal also. 360 gimbal. Okay, that is called as Infinity View. Okay. So that is what you can say. Again, आपका रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे बीच में एक मेरा स्टूडेंट था जो वाइल्ड लाइफ का सर्वेलेंस का फोटोग्राफी सब करता है, तो दैट
guy has taken DJI 3T 4T लिया अभी उसने, पहले 3T लिया था, अभी 4T लिया उसने. ओके, सो 3T उसका वो ये हुआ था, कॉन्फिस्केट हुआ था दुबई एयरपोर्ट पे. ओके. तो मैं जो बोला ना आपको सबर एग्जांपल दिया था, फिर उसको उधर यूएस भेजा, फिर यूएस से राउट करके, तो अभी वो यूएस में ही है, ड्रोन अभी भी यूएस में है. वो अभी तक वहां से लाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने उधर ही रखा है यूएस में. ओके. ओके, एज ऑफ नाउ. तो जब भी कोई आता रहेगा यूएस से, तो दे विल ब्रिंग इट बैक टू इंडिया. बट इट विल गेट क्लियर राइट फ्रॉम द कस्टम्स. अभी तो उधर हो गया ना वो. इट इज आउट फ्रॉम दुबई. वो दुबई में उनको रिस्ट्रिक्शंस हुआ था बिकॉज ऑफ द थर्मल सेंसर. वो दुबई में कुछ तो वियर्ड चीज है, मतलब वो थर्मल सेंसर वाले ड्रोन्स अलाउड नहीं करते. ओके. तो इसके लिए वो अटकाया था वहां पे. वो एक्चुअली ही केम फ्रॉम तांजानिया. उन्होंने दुबई में परचेस किया, दुबई से तांजानिया गए, तांजानिया से दे केम बैक टू दुबई एंड फ्रॉम दुबई दे वर सपोज्ड टू कम बैक टू मुंबई. तो जब दुबई से मुंबई आ रहे थे तभी उनको कस्टम्स में रोका हुआ. जबकि वो ड्रोन दुबई में ही खरीदा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने दुबई में खरीदा, उन्होंने रिसिट नहीं लिया था, तो उनके पास रिसिट नहीं था वहां, उसके वजह से अटक गया वो. तो उधर कस्टम से बात किया, तो उन्होंने फिर उनको सजेस्ट किया कि ये ड्रोन आप किसी के साथ, मतलब उनके पास कस्टडी में रखा गया था, they can collect it later on with the documentation and everything, and then they will not be allowed to take drone from Dubai to Mumbai, but they can be taking from Dubai to दूसरा फ्लाइट था, मतलब एमिरेट्स में अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग. ओके. सो यूएस लेके गए वो. हाँ बोलो पार्थ. If I take a drone, if I buy a drone and if I take it, for example, not out of India, but in India, for example, Delhi or somewhere, and if on the airport, if they ask me, if they like, for example, let's take it Dubai only. So we have दो our सिनेरियो है. देखो दो सिनेरियो पहले, एक डोमेस्टिक फ्लाइट और एक इंटरनेशनल फ्लाइट. First we'll take international because we have our office in Dubai also. Okay. So if I go Dubai, if I take the drone from here, and while coming back, if the customs ask me where did you buy this drone, and in India drones are not legally sold, right? They are not giving the bill and etc. Not even the warranty. So how to tackle that situation? देखो वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है अभी, स्पेशली डीजीआई के साथ बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. ठीक है, पहली बात तो आप परचेस नहीं कर सकते हो, तो आपको पास ना बिल रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा. राइट. तो वहाँ पे वो एक चैलेंज है ही है. वो चैलेंज के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. Okay. Even if my drone is registered with DGCA. I'm coming to that. Okay. एक चीज ये है कि पहला तो आपके पास रिसिप्ट नहीं है, लीगली परचेस नहीं है, तो ये आपने ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट, व्हाटएवर वी कॉल इट, थ्रू दैट बाय किया. लेकिन वही ड्रोन आप डिजिटल स्काई पे रजिस्टर कर सकते हो. यानी कि आप रजिस्टर्ड पायलट हो, लाइसेंस पायलट हो, आपका ड्रोन रजिस्टर्ड है ऑन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म. सो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है. ओके, जब आप जा रहे हो तभी आपको डिक्लेयर करके जाना चाहिए. Okay, that I am taking the drone from India only. करेक्ट. Right. कस्टम्स में डिक्लेयर करके जाओ. इवन आप जब दुबई में जाओगे तभी भी डिक्लेयर करो, वहां पे उनका कुछ तो पोर्टल पे है शायद, हाँ. आप डिक्लेयर कर सकते हो. डिक्लेयर करो और देन रिटर्न आते हो तो आपको वही फॉर्म डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, आपको कोई नहीं रोकेगा. But again, while from going from yeah. So from going from India only, if they ask me the bill in India only, like give me the first two documents, I'll give the DGCA certified, registered, and my license and everything. But again, if they ask आपने रजिस्टर किया ना तो नॉर्मली बिल नहीं मांगते. Okay. Rather they asking ना you produce your document. Okay. Understood. Okay. क्योंकि मेरा डिजिटल स्काई प्लेट मेरा रजिस्टर्ड है ड्रोन. आई एम अ सर्टिफाइड पायलट. तो आपको नहीं पूछना चाहिए. आप उसको पूछो फॉर्मेलिटी क्या है, क्या करना है मेरे को डिक्लेयर करने के लिए. Okay. So वो कुछ तो फॉर्म रहता है उनका जिसमें डिक्लेरेशन सब करना पड़ता है. वो आपको एक्नॉलेज करते हैं, सीरियल नंबर सब लेते हैं, तो देन दे विल गिव दैट फॉर्म टू यू. सेम दिन वहाँ पे आप जब क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट कॉल्ड, एम्बार्क. जब आप दुबई बाहर जा रहे हो तो आप हाँ इट्स अ कार्नेट फॉर्म. नहीं आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट, बट वो कुछ तो रहता है वहाँ पे. यू जस्ट हैव टू कि मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर करके लाया हूँ. ओके. एयरपोर्ट से, मुंबई से. तो यू ऑलवेज शो दैट जब आप एम्बार्क कर रहे हो ना, बाहर आ रहे हो, तो तभी आप उसको डिक्लेयर करके लेके जाओ, क्योंकि वो तभी तो इमिग्रेशन प्रोसीजर में आप तभी डिक्लेयर करोगे ना कि ऑलरेडी मैंने
एंट्री करते हो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, वहां पे भी आप डिक्लेयर करो, दे विल अलाउ यू। Because last time और दूसरा एक important document है, third important document which I forgot to tell. Since you said you have an office and you're going there and taking drone for some particular purpose, get a letter from your company. Understood. That you are bringing so and so drone Bringing. for so and so activity for so and so purpose and so days. Days, right? Understood. That document That is will be submitted. it. Yeah. That will Understood. be important. यही Understood. चीज मैंने वो बंदे को भी बोला था कि तांजानिया से आप जाओगे तो तांजानिया जहाँ जो कंपनी के लिए आप ये एक्टिविटी कर रहे हो उनसे लेटर लो। सी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अगर और मैंने दूसरा भी चीज बोला था कि उनको कि आप एक बार कस्टम्स पे चेक करो, यू कैन कॉन्टेक्ट कस्टम्स, आप देखो ऑनलाइन साइट पे मिलेगा, इवन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हर एयरलाइंस का अपना डूज एंड डोंट्स, अपना डेंजरस गुड्स, उनके डेंजरस गुड्स में कौन सा मतलब गुड्स को गुड है बैड है, क्या ले जा सकते हो क्या नहीं ले जा सकते हो, क्या लेना जाना है, अगर डेंजरस है तो उसको कैसे लेके जाना है, एवरीथिंग इज डिफाइंड ओवर देयर। सर हाँ कुंदन बोलो। एकदम वर्स्ट सिनेरियो पूछता हूँ। हाँ बोलो। अभी वीजा लग गया, टिकट निकाला, लास्ट मोमेंट पे मुंबई पे रोक दिया, आपके सब डॉक्यूमेंट नहीं वापस आई लॉस्ट। like suppose I'm going to Dubai for a like company, I got a letter like come for 5 days, do a videography for us drone, and I declare everything what you said and एकदम worst condition हो गया, officer is not cooperating, then what we can like आपने टिकट भी बुक है सब बुक है, ऑफिसर नॉन कोऑपरेटिव का वो अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो आपको हर जगह पे आता है। अभी मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे बहुत सारे जगह पे, स्पेशली बैंगलोर में। ओके अभी बैंगलोर में क्या होता है ना, अभी आपको पता है लिथियम में एकदम ड्रोन वन साइड में छोड़ो, लिथियम आयन बैटरीज आपको पता है राइट। लिथियम आयन बैटरीज के लिए क्या रूल है, बोलते हैं कि आप हैंड बैगेज में रखो राइट, जो आप ऊपर लेके जाते हो आपके साथ लेके जाते हो, आपको जो लगेज जो है उसमें नहीं रखना है राइट। पावर बैंक हो या लिथियम आयन, रूल क्या बोलता है कि आप हैंड बैगेज में लेके जाओ राइट। अभी मैंने क्या किया, मेरे पास एक डिवाइस है लेजर, ओके तो लेजर में बैटरी जगह, तो लेजर मैंने मेरा बैगेज में डाल दिया, जो मेरा बैगेज में चला गया, मैंने बैगेज सरेंडर कर दिया। अभी हैंड बैगेज में मैंने वो लिथियम आयन बैटरीज रख दी, तो उसने मेरे को बोला ये आपको अलाउड नहीं है। बोला क्यों अलाउड नहीं है, बोलता है कि बैटरीज आर नॉट अलाउड। मतलब बैटरीज नॉट अलाउड कहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर पावर बैंक अलाउ कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट, आई आस्क्ड देम टू शो द डॉक्यूमेंट। वो जो बंदा था ना ऑन ग्राउंड, जो बंदा है ना, ही इज नॉट दैट इफेक्टिव लर्न, उसको बोलो आप प्लीज कनेक्ट मी टू योर मैनेजर। मैनेजर थोड़ा ऊपर का लेवल का रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उसको पता रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको भी रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। तो मैंने उस बंदे को बैंगलोर एयरपोर्ट पे बोला कि भाई आप मुझे एयरक्राफ्ट रूल्स का डॉक्यूमेंट बताओ जिसमें ये बैटरी अलाउड नहीं है। तो वो मतलब अभी उसका ईगो पे आ गया एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा होता है। वो बोला नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वी डोंट, मैं बोला मैं दिखाता हूँ आपको, मोबाइल पे दिखा है उसको, बोला ये देखो लिखा है इसमें लिथियम आयन बैटरीज आर टू बी टेकन इन हैंड बैगेज, पावर बैंक्स आर अलाउड टू बी टेकन। आपका वेबसाइट जो एरोप्लेन का फ्लाइट से जा रहा हूँ, इंडिगो एरोप्लेन के जा रहा हूँ, तो उसके वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है डेंजरस गुड्स के बारे में। अभी बताओ आप मेरे को, फिर वो मतलब अभी नाउ ही डजंट हैव एनी आंसर, हिज मैनेजर आल्सो डजंट हैव आंसर। तो मेरे को बोलता है कि दिस टाइम वी आर अलाउइंग, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट अलाउ। मतलब नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम देखिए, अभी तो मैं जाऊँ, नेक्स्ट टाइम का मैं डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेके आऊंगा, बोला मैं, ऐसा बोल के निकला मैं। तो वही मैं पूछ रहा था। अभी और एक जगह पे मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये हुआ बैटरी का, तो आपको वो स्विस नाइफ पता है क्या, स्विस नाइफ? वो खुलने वाला नहीं, वो ऐसा क्रेडिट कार्ड जैसा आता है, क्रेडिट कार्ड में आता है। ओके तो मैं बॉम्बे से बैंगलोर गया, आई डिड द सेमिनार ओवर देयर, आई स्टेड देयर फॉर 2 days। व्हाइल कमिंग बैक जब बैंगलोर में सिक्योरिटी चेक होता है ना, तभी मेरे को बोला स्विस नाइफ आपका अलाउड नहीं हैंड बैगेज में। मैं बोला यार मैं बॉम्बे से जब आया तब मेरे को रोका नहीं वो बैंगलोर का तो बॉम्बे का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो अलाउड नहीं। मतलब अभी क्या प्रोसीजर है, नहीं आपको इधर सरेंडर करना पड़ेगा। अभी आप स्विस नाइफ दैट कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज, एक्सपेंसिव चीज है वो। ओके मल्टीपर्पज स्विस नाइफ है वो। आई कैन मतलब छोटा मोटा चीज रहता तो अपन बोलते चलो छोड़ो ना यार, पानी का बोतल कभी कभी रोकते हैं, कुछ छोटा मोटा ऐसा चीज रहते हैं 1000 मतलब 100-200 रुपए की
अमाउंट की कोई चीज है तो अपन बोलते चलो छोड़ दो यार, लीव इट, बट सच अ एक्सपेंसिव चीज आई कैन नॉट लीव इट एंड आई डोंट रियली डोंट वांट टू लीव इट। तो मैंने उसको पूछा अभी क्या ऑप्शन है बताओ, तो बोला नहीं नहीं आपको सरेंडर, बोला नहीं सरेंडर करना मेरे को, आप दूसरा ऑप्शन बताओ मुझे, मुझे ये चाहिए, मुझे आई वांट दिस इन बॉम्बे, आइदर यू सेंड इट सेपरेटली ऑन बॉम्बे और यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर और यू टेक मी टू द मैनेजर। तो वो उसको मालूम नहीं था, वो हड़बड़ गया, तो उसने बोला ठीक है आप एक काम करो, रुको वहां पे मैनेजर आएंगे जाएंगे। तो मैं बोला देखो मेरा फ्लाइट है, मेरा फ्लाइट अगर मिस हो गया तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, यू हैव टू अरेंज मी फॉर द अल्टरनेट फ्लाइट एंड ऑल दैट थिंग्स, आप मेरा डिले कर रहे हो फ्लाइट। तो बोले ठीक है, तो मैनेजर का आया, तो मैनेजर ने बोला कि एक काम करो, इनको वापस बाहर भेजो, वापस मेरे को बाहर भेजा, वापस मुझे जहाँ पे आप बोर्डिंग पास लेते हो वहां जाना पड़ा, वहां पे मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा, वो चीज उन्होंने सेपरेट पार्सल में पैक करवाई और फिर उसको अलग से सेम फ्लाइट में भेजी। ओके, सब मतलब यू हैव टू वर्क आउट। अभी ये ना ये सिनेरियोज ऐसे है कि जो ऑल ऑफ You have to use your brain. Yeah. आपको उस सिनेरियो पे कैसे क्या होगा वो रिएक्ट करना है। अभी देखो ड्रोन में दो चीज है, एक तो बैटरी के वजह से ही चैलेंज है, बाकी ड्रोन में क्या हार्म है बताओ, ड्रोन कैरिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नॉट हार्म। बिना बैटरी अगर ड्रोन का निकल जाए तो ड्रोन में क्या हार्मफुल चीज है बताओ, कुछ भी हार्मफुल चीज नहीं, राइट। तो वो ड्रोन क्या बोलते हैं, आप उसको पैक करो, लगेज में डाल दो, राइट, बैग में हो, या उसका केस अच्छा, बड़े ड्रोन्स अगर डीजे के ड्रोन्स आए तो अच्छे केस, हार्ड केस में आते हैं, उनको कैसे आते हैं, हाँ, तो उसको पूरा केस बेस आता है, उसको आप लगेज में डाल दो, फ्रजाइल डिक्लेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रजाइल डिक्लेयर करो, राइट। तो आपने डाल दिया। बैटरी आपको क्या बोलता है रूल कि आपको बैटरी अलग से कैरी करनी है विथ यू, एवरी बैटरी नीड्स टू बी पैक्ड सेपरेटली। वो बैटरी का एक क्या बोलते हैं उसको, फायर प्रूफ बैगेज आता है, ग्रे कलर का बैगेज आता है, so that it won't explode. हाँ, इट वोंट एक्सप्लोड, या एक्सप्लोड हुआ तो भी वो अंदर ही हो जाता है, वैसा टाइप कुछ तो बोलते हैं उसको। तो वो बैग्स में आप उसको लेके कैरी करो, ओके, दिस इज द रूल, ओके। तो वो पॉसिबल है आपको, और आप वो क्या बोलते हैं जो कनेक्टर्स है ना, उसके जो कनेक्टर्स पॉइंट्स है वहां पे आपको और एक ऐसा टेप लगा के उसको सील करना है, एक्सीडेंटली दे डोंट गेट शॉर्टेड आल्सो। बैटरी एक्सप्लोड कैसे होता है, अगर आप दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दो तो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है आपकी, एग्जैक्टली, राइट। तो वो दोनों शॉर्ट नहीं होते, उसके लिए इसलिए देखो कोई बैटरी के ऊपर ऐसा जहाँ पे कनेक्टर्स है उस पे कवर्स रहते हैं, वो कवर इसलिए रहते कि एक्सीडेंट ओके या शॉर्ट ना हो, इसके लिए रहते हैं। या फिर वो नहीं रहा तो आप उसके ऊपर एक वो मिलता है एंटीस्टैटिक कुछ तो बोलते हैं पेपर, वो पेपर लगा के आप टेप मार सकते हो उसके ऊपर, ओके, और उसको हर बैटरी को अलग पैक करो। Okay, so if I take a drone with me, for example DJI-3S, so I have to, so DJI वो उसका बैग देता है, they give the proper compact bag. वो DJI-3 का बैग है, वो पतला रेक्सिन का बैग आता है, Okay. आपको हार्ड केस बैग लेना पड़ेगा, या फिर बड़ा आपका ट्रॉली बैग में वो ड्रोन को प्रॉपर पैक करके अंदर रखना पड़ेगा। Yes, and then with the 3 batteries with me. Yes, right? yes. Okay. 3 बैटरीज का सेट आता है, राइट। अभी 3 batteries का सेट आता है, तीनों बैटरी अलग अलग पैक करके अलग-अलग पैक, एक साथ, मतलब एक साथ पक करके ऐसा एक पैक मत करना, अलग अलग पैक। Because whenever I go for shoots, I have my big bag GoPro which has everything, camera, lens, everything is there. राइट, So I carry with that. And my gimbal also. अभी कैमरा भी हम लोग लेके जाते हैं, तो कैमरा नॉर्मली अभी कैमरा छोटा चीज है, डेलिकेट डिवाइस है, इसलिए हम लोग हमेशा हैंडबैग अपने साथ में रखते हैं, लेकिन उसका कैमरा का बैटरी भी हम लोग डिटैच करके अलग से रखते हैं, Yes. राइट, अलग से। तो सिमिलरली ड्रोन में भी यही है। अभी ड्रोन भी अगर आपको हैंड बैगेज में कलेक्ट करना है तो आप हैंड बैगेज में रख सकते, लेके जा सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा सामान नहीं है। अगर आपको बड़ा ड्रोन है या आपको लगेज में रखना है तो लगेज में भी डाल सकते हो, बट डिक्लेयर एवरीथिंग, मेक श्योर यू हैव ऑल द सीरियल नंबर्स, ऑल द मॉडल नेम, एवरीथिंग, यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर डिवाइस। तो आप सामने वाला आपको चैलेंज नहीं कर सकता है, वो कहीं ना कहीं लूप होल फाइंड करता रहता है, ओके। तो वो अभी जो भी मैंने ऑप्शंस बताया कि हर बैटरी का लीड अलग से पैक करो, अलग से सील करो, ये सब प्रोसीजर फॉलो करोगे ना तो आपको पता है, दे थिंक दैट दिस पर्सन नोज हाउ आर थिंग्स टू बी डन एंड हाउ थिंग्स टू बी कैरिड, राइट। तो वो फिर आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। वो कहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे मतलब कॉजली लेके जा रहा है, पता नहीं, वो समझ जाते हैं किसको कौन कॉजल है और कौन पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनली किसको। करेक्ट। Second thing, for like in international, you said like what to do and all. For domestic, like you said, there are 2 different scenarios. डोमेस्टिक में क्या है ना,
डोमेस्टिक में इतना चैलेंज नहीं है आपको, क्योंकि आप विद इन द कंट्री आप फ्लाई कर रहे हो, हम्म तो आपको ड्रोन में इतना चैलेंज आएगा नहीं। आप सिर्फ डिक्लेयर करो सिंपल, आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, आपका पायलट लाइसेंस और ड्रोन का डॉक्यूमेंट। हम्म ड्रोन का एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें आपका नाम, मेक, मॉडल, हाँ। सीरियल नंबर, प्रॉपेलर, कितना बैटरी, बैटरी का सीरियल नंबर, ये सब एक डॉक्यूमेंट बना के बोलो ये मेरा डिक्लेरेशन है, इसके सिवा और कुछ चाहिए तो बताओ, पीरियड। वो कुछ नहीं बोलेंगे, जरूरत नहीं बोलेंगे, लेके जाओ। ओनली वो पूछेंगे बैटरी आपने कहाँ पे रखा है, बैटरी ड्रोन के साथ है, ड्रोन के अंदर है, अंदर है, बाहर है। सेपरेट पैक करके रखी है, तो दे विल नथिंग हैव टू क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है, वेरी सिंपल। डोमेस्टिक में इतना चैलेंजेस नहीं आते, काफी लोग ड्रोन लेके आ जा सकते। ओके प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे है, जब ओके बाहर से अंदर आते हो ना तो प्रॉब्लम होता है मोस्टली, इमिग्रेशन से बाहर निकल। स्पेशली अगर आप बैंगलोर पे लैंड कर रहे हो या फिर आप दिल्ली में लैंड कर रहे हो, ये लोकेशन पे बहुत- Yeah, I have experienced once because मैं जब भी दुबई गया था, so I had taken everything, camera, gimbal, everything. So while coming back, the custom guy asked कि from where did you buy this camera? Show me the bill, which I had everything with the camera bill, serial number, everything. Prepare your documents, better you have your documents, एक फाइल ही बना के प्रॉपर सब कुछ रखोगे ना, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपको, Yeah. राइट? बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो Yes. टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग। तो अभी देखो, अभी ये जब आप टेक ऑफ करते हो, नॉर्मली देखो ये जो मैन्युअल्स, टर्न, सर्किट पैटर्न्स जो है, आप नॉर्मली नॉर्मल कमर्शियल और सिविल एयरलाइंस में ये सब चीजें नहीं करते। आप क्या करते हो, टेक ऑफ होता है, स्ट्रेट फ्लाइट होता है, स्ट्रेट जाके आपका लैंड होता है। अब Land. ज्यादा ऐसा मतलब उड़ा, मतलब जो बोलते हैं ना मैन्युअर्स जो आप फाइटर पायलट्स करते हैं, वैसा ऐसा ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा मैन्युअर्स, ओके, टर्न, सर्किट पैटर्न, Turns, everything. वो सब Yeah. सिविल और कमर्शियल में नहीं होता, वो सिर्फ फाइटर पायलट्स में होता है, क्योंकि वहां पे दे आर सपोज टू फ्लाई। Fly like that. Yeah. Fly like that. And the planes are also modeled हाँ, like द that. इंजन, द एरोप्लेन इज स्मॉल, पावर ऑफ इंजन इज वेरी Powerful. हाई, इसीलिए वो Yeah. एकदम ऐसा स्ट्रेट वर्टिकली Yeah. नीचे आ सकता है, सो दैट इट कैन, वो स्टॉल पोजीशन से भी रिकवर कर पाते हैं, Yeah. राइट? सो दैट इज व्हाई, बिकॉज़ देयर जेट्स आर बीन डिजाइंड दैट वे। ओके, सो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट, टर्न्स, क्लाइम्स एंड डिसेंट। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली टेक ऑफ करते हो, स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट पे जाते हो, और फिर आप डिसेंड करके टर्न्स क्या है, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे अभी मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे जब टेक ऑफ करता था, मेरा टेक ऑफ क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन दिल्ली तो नॉर्थ में है, तो मुझे टर्न मारना पड़ेगा ना, तो टर्न उसमें स्मूथ टर्न होता है, Smooth, right. पता भी नहीं चलेगा फ्लाइट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो उनका टर्न ऐसा रहता है कि आपका क्लाइंब में ही टर्न हो जाता है, इतना स्मूथ टर्न होता है, मतलब एकदम ग्रेजुअल टर्न लेके आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम आपको बोलेगा वो सीधा स्टार्ट करते हैं, वी आर एंड नाउ 10,000 फीट, 20,000 फीट, एंड शॉर्टली आवर क्रू विल बी सर्विंग यू द रिफ्रेशमेंट, ये सब अनाउंसमेंट करता है, आप ये एंजॉय करते हो, हाँ मस्त मजा, क्लाइमेट भी अंदर का टेम्परेचर इतना प्लीजेंट रहता है कि आपको कुछ नहीं फील होता है, राइट? जब आप जैसे ही आप दिल्ली के पास पहुंचोगे तो आप देखोगे, अरे हाँ चलो दिल्ली आ गया, अनाउंसमेंट हो रहा है, आपको घड़ी में आपको पता चल जाएगा 2 घंटे हो गए, तो आप सोचोगे हाँ अभी दिल्ली पहुंच रहा हूँ मैं। पायलट अनाउंस करता है कि वी आर इन नेक्स्ट 10 minutes विल बी रीचिंग दिल्ली एयरपोर्ट एंड विल बी डिसेंडिंग नाउ फ्रॉम 10 to 20,000 फीट टू यू नो व्हाट 10,000 फीट, जो भी मतलब जो आपके काम की नहीं है चीज वो भी बताता है, लेकिन उसका काम है बताना। ओके, ही जस्ट मेकिंग यू रेडी कि बाबा हाँ अभी हम लैंडिंग पे आ गए हैं, दैट इज व्हाट इज द मेंटेन, सो यू लैंड। ओके, सो टर्न्स, क्लाइम्स, डिसेंट। क्लाइंब इज ओनली फ्रॉम लाइक 15,000 फीट से 20,000 या 10,000 से 15, 20, whatever it is. Turns are only if you are changing the direction. आपको चेंज, जैसे मुंबई से कलकत्ता जाना है तो मे बी यू विल फ्लाई स्ट्रेट अप टू अहमदाबाद, या फिर बीच में ही आप नासिक से राइट मारना चालू करोगे सीधा अप टू कलकत्ता, व्हाटएवर इट इज, यू नो। तो दोस टर्न्स आर नॉट रियली, आपको टर्न्स कभी महसूस होता है जब लैंडिंग के टाइम पे या टेक ऑफ के टाइम पे, बाकी नॉर्मल फ्लाइट में आपको टर्न्स इतना फील नहीं होता, या आपको समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मूथ एंड ग्रेजुअल। ये टर्न्स और जो मैन्यूअर्स है या सर्किट पैटर्न्स है, ये आपको ड्रोन में दिखेंगे, बिकॉज ड्रोन इज अ स्मॉल डिवाइस, इजी है, उसमें वो मोशंस अवेलेबल है फ्लाइट टर्न करने के, और उसमें आप वो करते हो, बट दैट इज ओनली इन रोटरक्राफ्ट। अगर आप फिक्स्ड विंग ड्रोन कर रहे हो तो उसमें भी आप इतना ड्रास्टिक टर्न नहीं मारते, उसमें भी आपको डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फिक्स्ड विंग आपको टर्न्स डिजाइन करने पड़ते हैं, आपको डिजाइन डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, सो जब मैंने ड्रोन को टेक ऑफ किया, मैं बोलूंगा पिच फॉरवर्ड, योर राइट,
When I say your right means first time when I say only your right means you have to turn from that position to 90 degree. From that position to 90 degree. Again I say again to your right. वापस और एक 90 Again, डिग्री. 90. अगर मुझे डिग्री करना है तो मैं बोलूंगा योर राइट 45 डिग्री. तो आपको 90 नहीं, आपको 45 डिग्री ही मूव करना है. 45 degree. तो दैट इज रिमेंबर, अगर मैं डिग्री ऐड करता हूं तो आपको डिग्री ऐड करनी है. अगर डिग्री ऐड नहीं कर रहा हो, आई एम ओनली सेइंग योर राइट, यू हैव टू डू 90 डिग्री. 90 degree. क्लियर? Yeah. अभी रोल राइट, अभी ये आपका पोजीशन है, आपने पिच फॉरवर्ड किया, अभी मैं बोला रोल राइट, तो रोल राइट आपको करना है थोड़ा टाइम के लिए, हार्डली 2 सेकेंड्स के लिए रोल राइट करना है. फिर बोला वापस कम बैक, ओके, तो रोल लेफ्ट करके आना है. वापस बोला और रोल लेफ्ट करो, तो रोल लेफ्ट करना है आपको. तो दैट्स वे यू शुड डिजाइन, यू शुड प्लान योर मूवमेंट्स. ओके, ये प्रैक्टिकली मैं आपको जब दिखाऊंगा तो और अच्छी तरह से समझाऊंगा. प्रैक्टिकल से ज्यादा आपको जब सिमुलेटर पे करने जाओगे तब आपको ये सारे चीजें मैं दिखाऊंगा सिमुलेटर एनवायरनमेंट में. और फिर हम लोग एक्चुअल डे 4 पे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे. और ये जो एक्टिविटीज है दीज आर कॉल्ड एज प्री फ्लाइट चेक्स. जैसे आपने ड्रोन को टेक ऑफ किया, आपका पहला एज अ पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्री फ्लाइट चेक करना. जैसे कि आप कार में बैठे, अपने इग्निशन किया, गाड़ी चालू किया, तो आप गाड़ी चालू करने के बाद इमीडिएटली आप एक्सीलेटर दबाते हो? नहीं दबाते हो. आप क्या करते हो? एक्सीलेटर थोड़ा सा गाड़ी को आगे लेके जाते हो, रुकते हो, रिवर्स गियर डाल के देखते हो पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फिर आप थोड़ा सा वापस देखते हो, जब आगे जाता है तो ब्रेक लगा के चेक करते हो. तो बेसिक जो चीजें चेक करते हो तभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, राइट? तुरंत से चालू, मतलब you are doing it every day, you may not be doing it, but ideally as a pilot you are responsible, you are supposed to do a flight check. So every time you are taking off the drone, you are supposed to do a pre-flight check, flight check. Okay, so what is the flight check means? आप ड्रोन को ऊपर लेके गए, पिच फॉरवर्ड, पिच बैक, रोल राइट, रोल लेफ्ट, योर राइट, योर लेफ्ट. ये 6 चीजें आपको करनी है. उसके बाद ही आपका एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है. उसके बाद एक्टिविटी जैसे हो सकता है कि भाई कुंदन प्लीज मेक अ स्क्वायर ऑन राइट साइड, आई मे टेल, तो आपको वो परफॉर्म करनी है. पार्थ प्लीज मेक अ स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड, प्लीज प्रिपेयर अ स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऑल दैट थिंग्स. ओके, जस्ट गिव अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल. Okay. Okay, so these all the pre-flights you have to check. Even before the flight, जब ड्रोन हमारा ग्राउंड पे है तो हमको ड्रोन का सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ चेक करना है. दैट इज कॉल्ड प्री फ्लाइट चेक्स. तो एक होता है प्री फ्लाइट चेक, फिर आप ड्रोन फ्लाइट में लेके जाओगे तो फ्लाइट चेक्स है, और फिर ड्रोन लैंड करते हो तो पोस्ट फ्लाइट चेक. So these 3 things you need to, as a responsible drone pilot, you have to do it every time. ठीक है? तो ये अगेन सर्किट पैटर्न, आपका टेक ऑफ होगा, आप फ्लाई करोगे एंड देन यू विल अगेन गो एंड लैंड. नॉर्मली आप कोई भी एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करके लैंड नहीं करते हो until unless you have इमरजेंसी और यू आर फ्लाइंग फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस. ओके, तो ये नॉर्मली आपका टेक ऑफ मे बी मुंबई एयरपोर्ट पे होगा और फाइनल लेग या डिसेंट जो होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेस्टिनेशन, राइट? So this is called circuit pattern. So take off होगा, final leg होगा, crosswind. This basically normally for aviation के लिए है. crosswind में wind का direction के ऊपर आप कैसे fly कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते हैं crosswind, downwind, base legs and final leg. Right? Okay. So that's, with that we complete our basic principles of flight. Any questions you have here? No. ठीक है? No, no. 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर we'll start. Okay. Okay. Okay.